ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے اور اللہ کے راستے میں آج کی رات یہاں گزارنے کی اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا جو ہے وہ حالات کا گھر ہے اور حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہے، اور ان مختلف حالات سے مختلف انسان گزرتے رہتے ہیں۔ آج کی رات بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں اس پنڈال میں رات گزاری ہے۔ تو اس رات میں اس راست میں بہت فرق ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس رات جو مشقت ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، وہ مشقت کا وقت تو گزر گیا، صبح ہو گئی اور دعا پڑھ کے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ لیکن اس کے اوپر جو اجر لکھا گیا ہے وہ اجر مرتب ہو گیا۔ اللہ کے لیے جو مشقت ہے، جو قربانی ہے، اس پر اجر ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ جب وہ بدلہ ملے گا تو اس وقت لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ اور ہم نے راہ خدا میں مشقت برداشت کی ہوتی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو ان کی قربانیوں کا اجر ملے گا تو بعض لوگ یہ کہیں گے کاش کہ ہم کو ہمارے جسموں کو کیچوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ تو یہ قربانی ہے، اس قربانی پر احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب یعنی ثواب کی ہمیں امید ہے، بلکہ ثواب کا یقین ہے کہ اس پر اللہ اجر دے گا۔ باقی مشقت تو سارے کسان اٹھاتے ہیں، جتنے کھیڑوت ہیں وہ اپنے کھیتوں میں پانی رکھتے ہیں تو رات سردیوں میں بعض راتیں ہوتی ہیں جو کھیت میں پیر مٹی میں لت پت ہیں، ادھر سے پانی آ رہا ہے، پانی بہا رہے ہیں۔ بارشوں میں اور مختلف موسموں میں لوگ اپنی دنیا کی خاطر بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ یہ مشقت اللہ کے خاطر ہے، دین کے خاطر ہے، تو اس پر بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ پوری استقامت کے ساتھ جم کر رات گزاری، بلکہ اکثر مجمع نماز میں، دعا میں، اعمال میں لگا۔ تو یہی اصل مطلوب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور ذرا کوئی حال ہوتا ہے تو توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیماری سیماری ہوتی ہے، آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، اجتماعی طور پر کوئی حال آتا ہے تو آدمی متوجہ ہوتا ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد رونا چاہیے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد وہ رونا چاہیے، اور زور سے رونا چاہیے۔ جتنا زور سے روئے گا اتنی اس کی صحت تندرستی اچھی ہوگی۔ اس لیے اگر پیدا ہو کر بچہ روتا نہیں تو اس کو رلاتے ہیں۔ ابھی ایک بھائی آئے تھے، 2-4 سال کا ان کا بچہ تھا، تو کمزور تھا، اور کمزوری کی وجہ بتا رہے تھے کہ پیدا ہو کر رویا نہیں تھا یہ،
تب سے یہ کمزوری کمزور ہے. اگر وہ روتا اچھی طریقے سے تو اس رونے میں تندرستی ہے. ایسے اللہ پاک بندوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، تو وہ حال بھی بڑا اچھا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ کر دے. وہی تو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اللہ سے مانگنے والا بن جاوے، اللہ سے لینے والا بن جاوے، رابطہ وہاں مضبوط ہو جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، ان کو اللہ آزماتا رہتا ہے تاکہ ان آزمائشوں میں وہ اللہ سے قریب رہے، اسی کو پکارتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں. یہ قرب کو بڑھانے والے اسباب ہوتے ہیں، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو اجر دیتا ہے، اور ان قربانیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا احتساب ہو. احتساب نہیں ہوگا تو شکایت ہوگی، احتساب نہیں ہوگا تو پھر شکایت پیدا ہوگی، اور احتساب ہوگا اجر کا کہ اس پر اجر ملے گا تو اور خوشی ہوگی. ایک مرتبہ سیہور میں اجتماع ہوا تھا، شاید سن 92 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو مجمع بہت زیادہ ہو گیا. کسی وجہ سے پانی کی جو لائنیں تھی وہ کٹ گئی تھی، اور دوسرے دن سے ہی پانی کی قلت ہو گئی. وضو میں بھی پانی کم ملتا تھا، استنجے کے لیے پانی میں قلت تھی. بہت سو نے تو اسی پر مٹی سے ہی ڈھیلوں سے استنجا کر لیا. اور جہاں پانی تھا تو وہاں یہ تھا کہ پہلے ایک لائن لگتی تھی لوٹا لینے کی، پھر لوٹے کی لائن سے فارغ آدمی ہوتا تو پانی کی لائن میں جاتا تھا، پھر پانی کی لائن سے فارغ ہوتا تھا پھر ٹوائلٹ کی لائن میں لگتا تھا، اور پھر ٹوائلٹ میں نمبر آتا تھا تو آدمی حاجت سے فارغ ہوتا تھا. تو جو نئے لوگ تھے وہ تو بیچارے گھبرائے اس سے کہ بھئی بڑی دقت ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. تو اجتماع کے بعد جب واپس لوٹے تو اس پر باتیں ہوئی. کسی نے کہا کہ بہت تکلیف تھی، پانی نہیں تھا، کسی نے کہا لوٹا نہیں ملا، کسی نے کہا مجھے باہر جانا پڑا. تو ہمارے ایک پرانے ساتھی تھے، مرحوم ہو گئے، انتقال کر کے اللہ ان کے درجات بلند فرماوے. تو انہوں نے جو بات کہی، کتنی بہترین بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں ایسا پہلا اجتماع دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ 3 خوشیاں بتاتا تھا اور ایک حاجت پوری کرتا تھا. کتنی خوشیاں ہوتی تھی؟ 3 خوشیاں ملتی تھی. پہلے لوٹے کی لائن میں کھڑے رہ کر لوٹا مل جاتا تو خوشی ہوتی تھی کہ چلو بھائی لوٹا مل گیا. پھر دوسری لائن میں جاتے تھے پانی کی، تو لوٹا پانی سے بھر جاتا تھا تو پھر خوشی ہوتی تھی کہ پانی ہمارے لوٹے میں پانی بھر گیا، اس کی خوشی ہے. اور پھر جب ٹوائلٹ کی لائن میں لگ کر وہاں نمبر لگتا تھا تو پھر تیسری خوشی ہوتی تھی کہ چلو بھائی نمبر لگ گیا. تو 3 خوشیوں کے بعد ایک حاجت پوری ہوتی تھی. یہ شکر والوں کی بات ہے. کن کی بات ہے؟ شکر والوں. تو یہ جو مشقت ہوئی ہے اس پر اگر احتساب ہوگا کہ اللہ پاک اس پر اجر دے گا. اس میں کتنوں نے دعائیں کی ہوگی، اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہوگا. ایک اضطراری کیفیت کے ساتھ تھے اور وہ دعائیں اللہ کے وہاں پہنچی ہیں، اور اللہ کے وہاں بندوں کی دعائیں قربانیاں رد نہیں ہوتی، سب لکھا جاتا ہے اور سب جمع ہوتا ہے. سب کی قربانیاں جمع ہوئی ہیں، دعائیں جمع ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر جمع ہوا ہے. تو اس پر اللہ کی ذات سے ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی پر سب سے پہلے ہم کو نوازے گا، جو اصل چیز ہے. بھائی کتنی بھی تکلیف ہو جاوے، صحت مل جاتی ہے تو آدمی بھائی چلو 2 مہینے رہنا پڑا ہاسپٹل میں، لیکن اللہ نے صحت دے دی، وہ 2 مہینے کی تکلیف بھول جاتا ہے، صحت مل گئی ہے. تو ایسے ہمارا جو مطلوب مقصود ہے مغفرت ہے، ہدایت ہے، اور یہ اس کے اسباب ہے کہ اسی میں آدمی متوجہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے. تو مغفرت کے اسباب ہیں، اور قربانی ہوئی ہے تو ہدایت کا سبب ہے. اس لیے اللہ سے پر امید ہو کر اس مشقت پر ہمیں احتساب ہو کہ اس پر اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے گا، اور اس قربانی پر اللہ تعالی عالم میں ہدایت کے فیصلے کرے. اس لیے ایسے موقع پر جو ہے خوب دعائیں کرنی چاہیے
वुसअत के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के वहां कमी नहीं है, अल्लाह के वहां कमी नहीं है, बहुत बड़ा देने वाला है, उसके वहां किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए इस वक्त जो है खूब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी, हमारे घर वालों को भी, हमारी बस्ती वालों को भी, जिले वालों को भी और पूरे आलम के इंसानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा, जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी हाजत है, जिसको हम हर नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, सीधे रास्ते पर चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है, जो नबियों का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सुलहा का रास्ता है, उस रास्ते की हिदायत की दुआ है। तो ऐसे मौके पर और ज्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर जो हमारा मकसद है, उस मकसद को अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा दे और अल्लाह ताला इसको जरिया बनाकर काम की सही शक्ल के वजूद में आने का जरिया बना दे, कि काम का ऐसा निजाम बन जाए पूरे इलाके में कि एक एक मुसलमान तक पहुंचने की सबील बने, एक एक पर मेहनत का निजाम बने। जो असल चीज है जिसके लिए हम जमा हुए थे 2 दिन से, जिसके लिए 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से आवाज लग रही थी, मेहनत हो रही थी, जो मकसद है कि हर फर्द उम्मत की जिंदगी जो है रुख पर आवे, हिदायत पर आवे, जो असल बुनियादी मकसद है मेहनत का, कि जिंदगियां हिदायत पर आवे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मेहनत के बाद यही नताइज होते थे कि जिंदगियां गुमराही से, दलालत से हिदायत की तरफ आती थी, जहालत से इल्म की तरफ आती थी, गफलत से अल्लाह की याद की तरफ आती थी। वही बुनियादी मकसद है इस काम का और वही मकसद है इज्तिमा का। जमा होना, जुदा होना नहीं, बल्कि ये मकसद है कि जिंदगियों में हिदायत आ जावे, जो हमारी बुनियादी जरूरत है। हवा से बड़ी जरूरत है, वो पानी से ज्यादा बड़ी जरूरत है। हवा पानी के बगैर मौत है, क्या भी मर जाएगा, और मरना तो हवा पानी के साथ भी है। जितने लोग रोजाना जा रहे हैं उनको हवा भी मिल रही है, पानी भी उनके पास है, खाना भी उनके पास है, लेकिन वक्त आ चुका है तो उनको दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन अगर हिदायत के बगैर गए हैं तो ये जाना खसारे वाला है, नुकसान वाला है, घाटे वाला है। और अगर आदमी हिदायत के साथ दुनिया से गया है तो ये जाना खैर वाला है, खूबी वाला है, भलाई वाला है, कामयाबी वाला है, कि ये आदमी खैर खूबी के साथ गया है, कामयाब होकर दुनिया से गया है, कि हिदायत के साथ दुनिया से जा रहा है। वही ये मेहनत का मकसद है, वही इज्तिमा का मकसद है कि हर आदमी हिदायत के रास्ते पर आ जावे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले मुबारक तरीके पर आ जावे, अल्लाह के अवामिर और अहकाम को अपनी जिंदगी में आदमी पूरा करता हुआ जिंदगी गुजार कर जब दुनिया से जावे तो अल्लाह का बंदा बन के जावे। उसकी वो पूरी नक्लो हरकत है, पूरी मेहनत है, उसी को हमें सीखना समझना है और उसी को सीखते समझते हुए दुनिया के इंसानों तक पहुंचना है। ये बड़ा काम है, ये मामूली चीज नहीं है। हाँ, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियां इसी में गुजरी, खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसी में गुजरी। अपनी रात से दीन पर चलते हुए, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए, इंसानियत की हमदर्दी और खैरखाही लेकर एक एक आदमी के पास जाकर उसको मकसद की तरफ मुतवज्जह करना, ये कोई जायद काम नहीं है या फारिग लोगों का काम नहीं है कि जिसको दुनिया का कोई कामकाज ना हो वो करेगा, बल्कि ये हमारी जिंदगी के कामों में से पहला काम है अल्लाह की इबादत इताअत करना, कि हर आदमी अल्लाह की इबादत के साथ जिंदगी गुजारे और जिस वक्त जो हुक्म है उन हुक्मों को बजा लावे, उसमें सुस्ती न करें, गफलत न करें, बल्कि अच्छे तरीके से बजा लावे। ये पहली जिम्मेदारी है कि हर काम में खूबी पैदा करें। जैसे चीजों में लोगों ने खूबी पैदा की है, हर चीज में, यहां तक कि जूते को भी खूबी से बनाते हैं। एक जमाना था जूते ऐसे वैसे होते थे, टूटे फूटे होते थे, किसी के रबड़ के, किसी के प्लास्टिक के, अरे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जूतों पर मेहनत की,
किस पर मेहनत की? जूतों पर। तो जूतों को भी खूबी से बनाया, अलग अलग कलर के बनाए। पहले अक्सर काले जूते होते थे, जूता काला ही होता था अक्सर। अब अलग अलग कलर के बनाए, उसमें हुस्न पैदा किया, खूबसूरती पैदा की, उसमें अलग अलग डिजाइन बनाई और अलग अलग तरीके से उसको सजाया है, संवारा है। कपड़ों को संवारा है, सजाया है, मकानों को, सवारियों को, हर चीज को। तवज्जो चीजों की तरफ है। हालांकि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए से इंसानों के आमाल की इस्लाह का एक निजाम बनाया कि अमलों को संवारा जावे और हर अमल को संवारा जावे, उसका हुक्म है। और जितना अमल संवारा हुआ होगा उसका अजर बड़ा है। तो जितना अच्छा होगा, जितनी उसमें खूबी है, जितना उसमें इखलास है, उसके बकदर उसका अजर होगा। नमाज कि जितनी सुकून के साथ है, इत्मीनान के साथ है, सुन्नत के मुताबिक है, खुशू खुजू के साथ है, वो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। फिर जितना उसमें इखलास है उसके बकदर उसका और अजर है, नमाज का उसके बकदर और अजर बढ़ जाएगा। ऐसे जितने अमाल है, तिलावत कलाम पाक है, अल्लाह का जिक्र है, रोजा है, ज़कात है और दीगर जितने काम हैं, जितने भी अमाल हैं, उन अमलों को संवारने का हुक्म है कि उसको अच्छा से अच्छा किया जाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह पाक ने इसलिए दुनिया में जिंदगी दी है कि वो आजमावे, परखें कि तुम में अच्छा अमल लेकर कौन आता है। ये मकसद है इस मेहनत का कि हर आदमी अपने ईमान में, अपने अमल में कमाल पैदा करे, हुस्न पैदा करे और मेहनत करे। इसलिए तबलीग में कदम कदम पर मेहनत, मश्क है, ईमान की मश्क है, नमाज की मश्क है, इल्म की मश्क है, जिक्र की मश्क है, अखलाक और खिदमत की मश्क है, इखलास की मश्क है, राह खुदा में जान और माल लगाने की मश्क है, कदम कदम पर मश्क है। नमाज में रुकू की मश्क है, क़ियाम की मश्क है, सजदों की मश्क है। फिर क़िरात जो है उसमें सूरह फातिहा, सूरतें, एक एक चीज की मश्क करके हर रुकन में, हर अमल में हुस्न पैदा करना, ये इस मेहनत का मकसद है कि हर मुसलमान राह खुदा में निकले मश्क करने के लिए, अपने अमल में खूबी पैदा करने के लिए, ईमान में कमाल पैदा करने के लिए, इबादत और नमाज में हुस्न पैदा करने के लिए, अपने अखलाक को संवारने के लिए, अपनी मुआशरत में हुस्न पैदा करने के लिए। ये सारी चीजें मेहनत चाहती है। जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि जूते पर मेहनत हुई तो जूते में हुस्न पैदा किया, उसमें खूबी पैदा की गई तो वो कीमती बनाया गया, उसकी कीमत बढ़ गई और उसकी कदर बढ़ गई। ऐसे जब अमलों की अच्छी मश्क होगी तो अमलों की कीमत बढ़ जाएगी, उसकी कदर बढ़ जाएगी और फिर उन अमलों पर मिलने वाले जो इनामात हैं वो इनामात का इस्तेहकाक पैदा होगा। यानी बंदों को अल्लाह ताला उन अमलों पर मिलने वाले जो इनामात है वो अता फरमाएगा। दुनिया में उसकी बरकतें जाहिर होगी, दुनिया में ईमान और तक़वे पर बरकतों का ज़ुहूर है कि अल्लाह ताला जमीन से, आसमान से बरकतों का ज़ुहूर करेगा। जमीन में बरकत हो जाएगी, आसमान की बारिशों से बरकत वजूद में आएगी, जिंदगियों में बरकत आएगी। उसका ताल्लुक इन आमाल के साथ। इसलिए अमल वाला बनना, अमल वाला कि नमाज वाला है, जिक्र वाला है, इल्म वाला है, अखलाक वाला है। आदमी के बारे में कहा जाता है ना भाई अच्छे अखलाक वाला है, तो यह है कि एक अमल वाला, एक सिफत वाला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों में ही था कि वो सिफात वाले थे। किसी के बारे में कहा गया कि सबसे बड़ा तक़वे वाला है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा गया वसयजन्नबुहुल अत्क़ा, कि सबसे बड़े तक़वे वाले हैं। नमाज वाले कहे गए उनको, रुकू वाले हैं, सजदे वाले हैं, सब्र वाले हैं, शुक्र वाले हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले हैं, जान और माल की कुर्बानी देने वाले। इन सिफतों के साथ उनको याद किया गया। हमारे जमाने में लोहे वाला है, लकड़े वाला है, होता है, प्लास्टिक वाला है, भंगार वाला कहलाता है कोई, कि ये तारुफ हुए लोगों के।
اور ان کا تعارف یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑے تقوی والے ہیں، یہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم جاننے والے ہیں، یہ سب سے اچھے قاری ہیں، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ کے نام پر خوب خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہوئی، اور وہی اصل پہچان ہے جو آدمی کو کام لگے گی، ورنہ یہ ساری پہچانیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی پہچانیں ہیں جس پر لوگ تفاخر کرتے ہیں، ڈاکٹر کہلانے پر، انجینئر کہلانے پر، ایڈوکیٹ کہلانے پر آدمی فخر کرتا ہے، خود سے اپنا تعارف کرواتا ہے، اس لقب کے ساتھ آدمی تعارف کرواتا ہے، نام پوچھتا ہے کہ آپ کیا نام ہے؟ کہ ڈاکٹر فلاں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ایڈوکیٹ فلاں۔ تو یہ تو سارے تعارف ختم ہونے والے ہیں۔ یا آدمی کا بزنس بڑا ہوتا ہے تو آدمی اس سے تعارف کرواتے ہیں، ہماری فلاں جگہ بہت بڑی ہوٹل ہے، ہماری فلاں دکان ہے فلاں جگہ پر۔ اس طرح آدمی تعارف کروا اور اس پر فخر کرتا ہے، اپنے مال پر، اپنی دکان پر، اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر۔ انسان کے لیے فخر کی چیز تو وہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ عمل والا ہے، تقوی والا ہے، اخلاق والا ہے، انفاق والا ہے، کہ لوگوں پر آدمی خرچ کرنے والا ہے۔ تو یہ صفتیں ہیں جو صفتیں ہر آدمی کو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس کے لیے نکالا جاتا ہے 4 مہینوں میں، چلوں میں، 3 دن میں، مقام پر محنت کرواتے ہیں کہ ہر آدمی لگا رہے، جڑا رہے، کام اس نیت سے کرتا رہے اور کوئی نیت نہ ہو۔ اگر دوسری کوئی نیت ہے تو وہ اس کی نیت پوری ہو جائے گی، لیکن یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ آدمی اگر دنیا بنانے کی بھی نیت سے کرے گا تو دنیا تو اللہ کے وہاں کی حقیر چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ ایک آدمی کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی نیت میں ہے کہ فیکٹری کا جو اسکریپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے مل جائے، تو مالک سے اگر وہ اس کی درخواست کرے گا، کیا رد کرے گا وہ؟ ایک آدمی 50,000 کی تنخواہ چھوڑ کر 500,000 روپے کا اسکریپ لے جانے پر راضی ہو تو مالک منع کرے گا اس کو؟ بولو نا بھائی، کیوں منع کرے گا اس کو؟ ایسے یہ جو کام ہے یہ تو ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت بنانے کا کام ہے۔ اگر اس کے بدلے میں آدمی متاع قلیل چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، تو تھوڑی دنیا اس کو مل جائے گی۔ تھوڑی دنیا قرآن پاک میں کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو تھوڑی دنیا دے دیں گے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ اور جہاں آخرت کی بات آئی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے، اللہ اجر کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتا ہے۔ جتنی آدمی محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، قربانیاں برداشت کرے گا، جان لگائے گا، مال لگائے گا، اور جتنی مشقت ہوگی اس کے اوپر اجر بڑھتا جائے گا۔ پھر آدمی کے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے ان عملوں کا وزن ہوگا قیامت میں۔ ترازو قائم کی جائے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، انصاف کی ترازو قائم کرے گا، اس میں اعمال کا وزن ہوگا، وزن اعمال ہے۔ نمازیں تولی جائے گی، روزے تولے جائیں گے، ذکر و تلاوت کو تولا جائے گا، راہ خدا کی قربانیوں کو تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ جیسے چیزوں کا وزن ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، لکڑے کا وزن ہوتا ہے، اور چیزوں کا وزن ہوتا ہے، ہوا کا وزن ہوتا ہے، ہوا کا وزن ہوتا ہے کہ کتنی ہوا ہے، پانی کا وزن ہوتا ہے، ایسے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن کے بقدر اللہ تول کر دے گا، اور پھر اپنی طرف سے بڑھا کے دے گا۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک کام کیا ہے تو اس کا اللہ پاک اس کو بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ محنت اس کی ہے کہ یہ دھیان ہمیں پیدا ہو اور ہم آخرت کی کھیتی کے طالب بنیں۔ آخرت کی کھیتی کی طالب ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جاوے، ہماری قبر اچھی ہو جاوے۔ جیسے یہاں آدمی نے بستر لگایا تھا، ہر آدمی اچھی جگہ تلاش کرتا ہے آ کر کہ ذرا مناسب جگہ ہو، بستر ٹھیک سے لگ جاوے، زمین پر سونا ہے، تکیہ ٹھیک سے آدمی لگاتا ہے اور بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے یہاں تو 2 دن رہنا تھا،
2.5 दिन रहना था, 3 दिन था। कब्र के घड़े में जो है आदमी को जब से मरेगा वहां से लेकर कयामत तक सोना है। आदमी वहां की फिक्र करेगा कि कब्र में हमारा सोना अच्छा हो जाए। वहां कोई आदमी यहां से बिस्तर ले नहीं जा सकेगा, चाहे बादशाह का इंतकाल हुआ हो या किसी वली कामिल का हुआ हो, अंदर कोई बिस्तर रखता है? बोलो ना भाई। लेकिन कब्र की राहत के लिए बिस्तर जन्नत से आता है। कहां से आता है? जन्नत से बिस्तर आएगा। हदीसों में आता है कि ईमान वाला बंदा, नेक बंदा दुनिया से जाता है, उसका जाने का वक्त आता है तो उस वक्त 500 फरिश्ते आते हैं। 500 फरिश्तों का वक्त आता है इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ, और उसको बशारतें सुनाते हो। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु, कि कोई खौफ न करो, कोई गम न करो। ला तख़ाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और बशारत पकड़ो उस जन्नत की जिसका तुमको वादा किया गया है। वो कोई फर्जी वादा नहीं है, कोई फर्जी बात नहीं है जन्नत, ये अल्लाह का वादा है। नबियों ने इसकी खबर दी है, कुरान शरीफ में जगह जगह उसका तज़किरा है। ईमान वालों को वादा किया गया है, मुत्तकीन के लिए जन्नत को तैयार किया गया है। वइद्दत लिल मुत्तकीन इन्न लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। ये उसकी तफसील बताई है कि मुत्तकियों के लिए, ईमान वालों के लिए हमने तैयार कर रखी है। उसकी पहली मंजिल कब्र है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र का तज़किरा सुनते थे तो बहुत रोते थे। इतना रोते थे कि उनके आंसू दाढ़ी पर आ जाते थे और दाढ़ी तर हो जाती थी आंसू। लोगों को दुनिया में देखते हैं रोते हुए, बहुत से लोग रोते हैं दुनिया में, रोजाना रोते हैं, दाढ़ी तक आंसू आ जाते हैं। बाजों को 2-3 दिन तक रोना थमता नहीं है। जिन चीजों की अहमियत है दिलों में, उसके जाने पर, उसके छूटने पर लोग रोते हैं। पहलवान रोते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग रोते हैं जिनको कभी रोते नहीं देखा गया। आने वाले हालात पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कोई बीमारी में रोता है, कोई किसी की मौत पर रोता है, कोई कर्जा होने पर रोता है, कोई घाटा खाने पर रोता है, कोई मुसीबत आने पर रोता है। लोग रोते हैं। वो दुनिया और आखिरत को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए दुनिया की चीजों पर और दुनिया के हालात पर वो कम रोए हैं, कम रोए, बल्कि सब्र किया उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन की। उनके ऊपर परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तकलीफें आई, भूख और प्यास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन की, इस पर सब्र करो, अल्लाह इसके बदले में जन्नत देगा। तो उससे दिलों में इत्मीनान पैदा हो गया। सहाबा पर हालात आए। आले यासिर जो है, अम्मार इब्न यासिर का तज़किरा है, फज़ाइल में भी उनका किस्सा लिखा है आले यासिर का। तो उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया मक्का मुकर्रमा में इब्तिदाई दौर में, तो उन पर बड़े हालात आए। उनको बहुत तंग किया लोगों ने, बहुत परेशान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुजरते उनके मोहल्ले में से, तो उनके हालात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंसू आ जाते थे। आप रोते थे उनके हालात पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सब्रन या आले यासिर, सब्रन या आले यासिर, इन्न मौइदकुमुल जन्नह, कि हमारा तुमसे जो वादा है वो जन्नत का है। किसका वादा है? जन्नत, जो हक है। हमने जो वादा तुमको किया है वो जन्नत का है, सब्र कर लो। और जबरदस्त जो हालात मक्के में रहे मुसलमानों पर, तो उसमें अल्लाह की तरफ से भी सब्र का हुक्म था कि सब्र करते रहे, अपना हाथ रोके रखे और सब्र करते रहे। पहला हुक्म यही था, सब्र करते रहे, और जो हुक्म अल्लाह के हैं उन हुक्मों को पूरा करते रहे। ईमान का हुक्म था, ईमान पर साबित कदम रहे, डगमगाए नहीं, जमे रहे अपने ईमान पर। इसकी बात की गई उनसे कि अपने ईमान पर जमे रहे, साबित कदम रहे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जो वादा किया वो जन्नत का किया, इसलिए कि दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है और वो अबदी जिंदगी बाकी रहने वाली है। कि जन्नत का वादा किया कि नेमतों की जगह जन्नत है, अल्लाह का वो मेहमान खाना है जहां नेक लोगों के लिए जगह है, मुत्तकीन के लिए जहां पर जगह है, परहेजगारों के लिए बनाई गई है।
اور اس کے یہ مراحل ہیں کہ موت اور ما بعد موت سب سے پہلی منزل قبر ہے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں جو دکھ کی چیزیں ہوتی تھی جس پر وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، وہ احوال آخرت ہے. وحید عثمان جیسے آدمی ہیں، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، جنت کی بشارت ان کو ملی ہوئی ہے، عشر مبشرہ میں سے ہیں. ایک خاص بشارت ہے عشر مبشرہ کے لیے اور عام بشارت عام صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر، عمر اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ بنائے گئے. لیکن وہ جب قبر کے حالات کو سنتے تھے، قبرستان سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا داڑھی مبارک تر ہو جاتی. سمجھتے تھے کہ قبر کے حالات کیا ہیں، اس لیے تیاری کرتے تھے. اور وہاں کی تیاری یہ نہیں کہ آدمی یہاں اچھا بستر بنا کے لے جائے گا، وہاں کوئی اچھی جگہ پر آدمی اپنی قبر کی تجویز کر لے گا کہ بھائی میری قبر یہاں بناؤ. بلکہ وہاں کی تیاری جو ہے اچھے اعمال ہے، نیک اعمال ہے. جتنے آدمی کے پاس اچھے عمل ہیں ان عملوں کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہاں، اس عمل کے بقدر. کتابوں میں آتا ہے جب نیک بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، ویلکم. کوئی اچھا آدمی آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اندر گھر میں گھر سجاتے ہیں اور نئی چادریں بچھاتے ہیں اور نیچے قالین بچھاتے ہیں، خوشبو کا اسپرے کرتے ہیں، دروازے تک باہر لانے جاتے ہیں اور ان کو وہیں سے آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آپ کا استقبال ہے. آدمی سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، مہمان کو گھر کے اندر لاتا ہے، بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کھانے کا نظام ہوتا ہے، ان کے آرام کا انتظام ہوتا ہے. ایسے وہاں قبر کی طرف سے تیرا آنا مبارک ہے، آ جاؤ. جتنے لوگ زمین کی پشت پر چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تھی. اب تو میرے پاس آیا ہے، میرا سلوک بھی دیکھے گا. اور اس کے لیے منتہا نظر تک، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے. منتہا نظر وسیع ہو جاتی ہے قبر. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا ہوا ہوتا ہے. یہ اصل عزت و اکرام کی چیزیں ہیں. اصل عزت کی چیزیں یہ ہیں، اصل اکرام کی چیزیں یہ ہیں. اس لیے صحابہ کی نظر اس پر تھی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر اس پر ہوتی ہے. اس لیے وہ دنیا میں زیادہ خواہشات کے پیچھے نہیں لگتے. دنیا کی نعمتوں سے وہ بہت زیادہ اس میں مشغول نہیں ہو جاتے، بقدر ضرورت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی نعمتوں سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھایا. بقدر ضرورت، کمر سیدھی رہے اتنا کھانا کھا لیا، تن چھپ جاوے ایسا کپڑا پہن لیا، حاجت پوری ہو جاوے اس کے بقدر سواری استعمال کر لی، رات میں آرام ہو جاوے اس کے بقدر آپ نے حجرے بنا لیے کہ بقدر ضرورت فائدہ اٹھایا. اور باقی جو کچھ کیا تو اپنی قبر کے لیے تیاری کی، اپنی آخرت کے لیے تیاری کی. اور یہی عقل مندی ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے. ہم لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں. ارے ہوتا ہے نا ایسا، شادی میں سب بے قابو ہو جاتے، پڑھے لکھے کیا ان پڑھ کیا سب بے قابو ہو جاتے. ذرا پیسہ آتا ہے تو ہر ایک بے قابو ہو جاتا ہے اس کو خرچ کرنے میں. حالانکہ یہ قابو رکھنے کا وقت، طاقت آدمی کے پاس ہے، قابو رکھنے کا وقت ہے. بے قابو نہ ہو جائے. آدمی کو اختیار آتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس کچھ قدرت ہے. ہاں اللہ نے طاقت دی ہے، اب پتا چلے گا کہ یہ ظالم بنتا ہے یا انصاف پسند بنتا ہے. ہاں، جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کہاں خرچ کرتا ہے. قابو نہیں ہے ابھی. اس وقت جو ہم رکے ہوئے ہیں بہت سی چاہتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی قدرت نہیں ہے. اس کی قدرت نہیں ہے. اس کی قدرت آنے کے بعد قابو میں رہنا، یہ اصل بات ہے. من دان نفسہ، جو اپنے آپ پر قابو رکھے. مال آیا ہے اس وقت قابو میں رہے، طاقت ملی ہے قابو میں رہے، جوانی ہے قابو میں رہے. 2-5 آدمیوں کے درمیان میں آدمی کی عزت ہو رہی ہے، آدمی قابو میں رہے. ہاں، اس وقت میں جو بندہ ہوگا وہ قابو میں رہے گا، کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ قابو میں رہے گا.
اور اللہ کی بندگی کا طریقہ نہیں سیکھا ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے کہ بندگی کا طریقہ نہیں سیکھا ہے، تو اس وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، مال آنے پر، طاقت آنے پر، قدرت ملنے پر۔ اس لیے اس محنت میں اس کی تعلیم ہے کہ آدمی دین پر چلنا سیکھے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو دین پر کیسے چلنا ہے، مال کے ساتھ اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے ساتھ کیسے دین، بیٹھ جاؤ بھائی آپ حضرات بیٹھ جاؤ، طاقت ملنے کے ساتھ آدمی دین پر کیسے چلے، طاقت کے ساتھ کیسے دین پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ طاقت مل گئی تو آدمی اپنے حساب سے استعمال کرے اور مال ملا تو اپنے حساب سے استعمال کرے۔ دو آدمیوں کے درمیان میں عزت ملی ہے تو آدمی اپنے حساب سے استعمال کرے، ایسا نہ ہو۔ دین طریقہ سکھاتا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ عقل مند ہے۔ ہاں، فراخی کے وقت قابو میں ہے، بیجا مال خرچ نہیں کر رہا ہے، ضرورت پر لگا رہا ہے۔ طاقت کے وقت آدمی قابو میں ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے، یہ طاقت قابو سے آدمی استعمال کرے۔ غصے کے وقت آدمی قابو میں ہے، بے قابو نہ ہو۔ ہاں، حکومت آدمی کے ہاتھ میں آئی ہے تو قابو میں رہے، دین اس کا طریقہ سکھائے گا، سمجھائے گا، دین سے آدمی میں اعتدال پیدا ہوگا۔ ہاں، جو اصل چیز ہے کہ انسان دین کی روشنی میں زندگی گزار کر اعتدال کے ساتھ رہے گا، دسترخوان پر بھی قابو میں رہے گا اور بازار میں بھی قابو میں رہے گا اور مال ملنے کی حالت میں قابو میں رہے گا۔ بلکہ یہ سمندان نفسا کہ جو اپنے آپ پر قابو رکھے وہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو بڑی بلڈنگ بنا دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت بڑی زمین خرید لے، عقل مند وہ نہیں ہے جو کوئی کسی چیز کی ڈیزائن کر دے۔ ایسی تو دنیا میں آپ بہت سارے جاندار ملیں گے آپ کو جو بہتر سے بہتر ڈیزائن کرتے ہیں، بہت سارے پرندے ہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، بہترین ڈیزائن کرتے ہیں، جن کا گھونسلہ درخت پر لٹکا ہوا ہے لیکن بارش کے موسم میں ایک بوند پانی اندر نہیں جاتا، 120 کی اسپیڈ سے ہوا چل جائے بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، وہ درخت زمین سے اکھڑ جاتا ہے لیکن وہ گھونسلہ وہاں سے نہیں ہلتا۔ اس کے پاس اتنی قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے تو وہ اس پر غرور نہ کریں، اپنی عقل پر، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ عقل مندی وہ ہے کہ آدمی قابو میں ہے، دین پر ثابت قدم ہے، مال ملا ہے تو مال میں قابو میں ہے، فقر میں ہے تو فقر میں قابو میں رہے، گھبرا نہ جاوے فقیری سے گھبراوے نہیں، ڈرنے کی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے فقیری تو اس فقیری میں آدمی کو ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ثابت قدم ہے تو یہ فقیر جو ہے قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، حساب کا بوجھ ان کو نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ حساب کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کہ مال ہی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی حساب نہیں، اور جس کے پاس ہے اس کو قدم قدم پر حساب ہے، اس کو قدم، جیسے ایک ٹرین میں سفر کرنے والے دو مسافر ہیں، ایک کے پاس 10 لاکھ روپے تھیلی میں ہیں اور ایک ہے جس کے پاس صبح کے ناشتے کے لیے پیسے نہیں، تو دونوں میں سے زیادہ ٹینشن میں کون ہوگا؟ مالدار۔ بولو نا بھائی، ہاں، کہ ٹینشن اس کو زیادہ ہے، رات بھر نیند نہیں آئے گی، رات بھر نہیں سو پائے گا کہ جو جوخم ہے یہاں پر۔ ایسے جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہیں، نعمتیں ہیں، وہ فکر کے ساتھ اس کو استعمال کریں کہ ان نعمتوں کا وہاں حساب دینا ہے۔ قابو رکھے اپنے اوپر کہ یہ مال جو ہے بیجا خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کپڑوں پر، جوتوں پر، مکان پر، سواریوں پر جو ضرورتیں ہیں اس پر بیجا خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں، بقدر ضرورت آدمی بوقت ضرورت خرچ کرے، ضرورت کی مقدار ہو اور ضرورت کے وقت خرچ کرے۔ تو اگر وہ اس طرح سے اچھی نیت سے خرچ کر رہا ہے تو اس پر اللہ اس کو اجر بھی دے گا، ضرورت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس میں قابو میں نہیں آدمی، جیسے اس وقت عمومی ماحول ہے کہ کیا 4 مہینے والا، کیا چلنے والا، اور کیا پرانا کیا نیا،
جب شادی آتی ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے، گھر بناتا ہے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، عید آتی ہے تو سب بے قابو ہو جاتے ہیں، بچوں کی محبت میں سب بے قابو ہو جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ رواداری کرنے میں سب بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اعتدال والا طریقہ سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی ازواج مطہرات اور اپنی اولاد کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے جس میں ان کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے امت کو بتایا ہے کہ جان اور مال کو کس طرح لگایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام اپنی ازواج کو 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، 1 سال کا متوسط درجے کا نفقہ دیتے تھے، اور وہ نفقہ دے کر ان کو ترغیب دی تھی آپ نے خرچ کرنے کی۔ ہاں، تنافسی کیفیت آپ نے پیدا کی تھی، ازواج مطہرات میں عبادت کی بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی اور دیگر نیک کاموں کی بھی، تو ان کے وہاں ماحول یہ تھا، ازواج مطہرات بھی اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اور مدینے میں رہنے والے مہاجرین و انصار، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب وہ آخرت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے مال کو آخرت بنانے والے کاموں پر لگاتے تھے۔ آپ جو ان کا خرچہ دیتے تھے سال بھر کا، اس میں سے وہ اپنی آخرت بناتی تھی اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاتی تھی عورتیں۔ عورتوں کو دیا آپ نے، لیکن ان کو راستہ بتایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اور جہاں دیکھا آپ نے کہ ان کا رجحان تھوڑا بہت دنیا کی طرف یا دنیا کی آسائش کی طرف ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت سمجھائی، وہاں کی نعمتیں بتائی اور ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف کیا۔ یہ اصل چیز ہے جو اس محنت سے چاہی جا رہی کہ ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے، ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دانا کہا، ان کو عقل مند کہا، ان عقل مندوں والے طریقے پر ہم اپنی جان، مال، جذبات اور صلاحیتوں کو لگاویں، اپنی گھر کی بیویوں کو اس کے لیے ہم تیار کریں، اپنے بچوں بچیوں کا یہ ذہن بناویں۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے، ان کا یہ ذہن بنے گا، وہ کامیابی کی طرف اب سوچ رہے ہیں، اور اگر یہ ذہن نہیں ہے تو دوسری سوچ پیدا ہو جائے گی۔ ہر وقت دنیا کی حرصیں، دنیا کی طمع ہیں، دنیا کی لالچ ہے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہے، ہر وقت کپڑے لتے کی فکر ہے، اور ہر وقت جو زمانے کے عرف تیار ہوتے ہیں، ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، اسی کی طرف رجحان ہے، اسی میں آدمی کامیابی یقین کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا بنگلہ ہوگا تو ہماری گاؤں میں عزت ہو جائے گی، ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوں گے تو ہماری عزت ہوگی، اور ہمارا بچہ انگلینڈ امریکہ میں ہوگا تو ہماری عزت ہوگی۔ یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار اللہ کا دین ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے، عزت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، عزت کا معیار اللہ کا ڈر ہے، عزت کا معیار آدمی کی عبادت اور اعمال ہے، عزت کا معیار اچھے اخلاق ہیں، عزت کا معیار اللہ کے نام پر قربانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ قیامت تک وہی معیار اللہ کے وہاں ہے کہ اسی معیار پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھے گا، اور جن میں یہ چیزیں پائی جائے گی اللہ ان کی دنیا کو آباد کر دے گا، ان کی حاجتوں کو آسانی سے پوری کرے گا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسے افراد کی محبت ڈالے گا، لیکن وہ افراد پورے یقین کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہو، شک کے ساتھ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دین کا کام کا، لیکن تذبذب ہوئے ہیں، اہل دنیا کی دنیا پر رال ٹپکا رہا ہے، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ بھی وہی چاہ رہا ہے، اپنے عملوں کے ذریعے سے بھی آدمی اسی کا طالب ہے کہ نماز پڑھ کر نمازی بھی دنیا چاہ رہا ہے، دین کا کام کر کے دین کا کام کرنے والا بھی دنیا کا طالب ہے، تو پھر ایسے عمل والے کو وہ عزت نہیں مل سکتی ہے کہ یہاں تو دین کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضا کا طالب ہے، اعمال دین کے ذریعے سے آدمی اچھی آخرت کا طالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ کرے گا، اور دنیا جو ہے ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ ہاں، دنیا میں حاجتیں خدا آسانی سے پوری کر دے گا، اور جب دنیا آئے گی تو چونکہ طالب نہیں ہے، یہ جو آدمی طالب نہیں اس کے پاس آئی ہے وہ بقدر ضرورت لے گا اس میں سے، اور جو طالب بنا ہے تو وہ تو مزید اور چاہے گا، کیونکہ دنیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی،
इब्न आदम का पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। रुपयों से नहीं भरा है, उसका पेट डॉलर से नहीं भरेगा, उसका पेट यूरो से नहीं भरेगा, उसका पेट सोना चांदी के जखायर से नहीं भरेगा। जिसका पेट अगर 2-5 एकड़ से नहीं भरा है, उसका पेट 100 एकड़ से भी नहीं भरेगा। 1000 एकड़ का मालिक हो गया, पेट नहीं भरेगा। आप फरमा रहे हैं, ज़बान मुबारक फरमा रही है आपकी कि उसका पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। तो जो उसका तालिब बना वो तो हमेशा फकीर है। जो भी इसका तालिब बनेगा हमेशा फकीर रहेगा। वो करोड़पति अरबपति बनने के बाद भी वो मालदार नहीं होगा, वो गनी नहीं हो सकेगा। और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमा रहे हैं कि जो आदमी मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाएगा, इब्न आदम से है, इब्न आदम तो मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, तेरे सीने को तफक्कुरात से खाली कर दूंगा, तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, तो आदमी गनी होगा। रोजाना वो तो कब्र देख रहा है, कब्र में बिछा हुआ जन्नत का बिस्तर देख रहा है। वो तो मौत के वक्त 500 फरिश्तों का इंतजार कर रहा है, जन्नत के फूल और गुलदस्तों का इंतजार कर रहा है। वो उसी की फिक्र में लगा हुआ है और आखिरत की नेमतें याद आ रही है कि वहां कयामत मैदान कयामत में अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के साथ कैसा सलूक करेगा। उनकी इज्जत होगी, उनका इकराम होगा, अल्लाह के अर्श के साए में उनको जगह मिलेगी। जब लोग नफ्सा नफ्सी में होंगे और हिसाब की सख्ती उन पर होगी, ऐसे वक्त में नूर के मिंबरों पर बैठना है। ये चीजें, ये मनाजिर सामने होंगे कि ये आखिरत की तालिब है। तो इसलिए हर वक्त इसी का इंतजाम कर रहे हैं कि कयामत में जब लोग हिसाब किताब में मशगूल हो तो नूर के मिंबरों पर बैठने का सबब क्या है। कयामत में जब सूरज बिल्कुल सर पर हो तो उस वक्त में अल्लाह के अर्श के साए में जाने का इंतजाम क्या है, वो निजाम कैसे होगा। जैसे लोग इंतजाम करते हैं दुनिया में 50 साल का फ्यूचर, हर आदमी भाई असल में फ्यूचर का मसला है। 15 साल का बच्चे को क्या कि फ्यूचर का मसला है। आपको किसने कहा कि मेरे अब्बा कहते हैं कि तेरा फ्यूचर बन जाए, इसके लिए इंग्लैंड चला जाए, चाहे दीन बर्बाद हो जावे, चाहे अल्लाह की इताअत से आदमी गाफिल हो जावे, चाहे आदमी पक्का दुनियादार बन जावे, तो फ्यूचर का मसला है। फ्यूचर का मसला है कि असल फ्यूचर तो वो है, असल फ्यूचर वो है कि आदमी के सामने कब्र है, हशर है और वहां के मराहिल है, वो मामूली नहीं है, वो मराहिल मामूली नहीं है। यहां आने के बाद 2 दिन ठहरना था तो कितनी फिक्र थी कि कहां जगह बनाएंगे, और अगर भीड़ हो जाए, मजमा बाज़ मतलब बढ़ जाता है तो सब एकदम से फिक्र भाई कहां रात गुजारेंगे। जरा सर्दी बढ़ जाती है तो आदमी फिक्र में आ जाता है भाई कैसे इंतजाम होगा। तो जब यहां मामूली हाल है, थोड़ी देर का हाल है, वो हाल हमें इस तरह से बेचैन करता है, तो ये अहवाल आखिरत है जिनको अल्लाह ताला ने बयान किया है, खोल खोल कर बयान किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीसों में इसको खोला है, सहाबा ने इनको सबसे पहले सुना था और सही तरीके से वो समझे थे इसको, इसलिए वो इन अहवाल के बारे में फिक्रमंद थे। और जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र का तज़किरा सुनते तो इतना रोते थे कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, जन्नत जहन्नम के तज़किरे पर भी आप इतना नहीं रोते हो जितना कब्र के तज़किरे पर रो रहे हो। तो फरमाने लगे, भाई आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है, ये पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल पार हो गई उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हो जाएगी। हमारे सामने मनाजिल हैं, इसलिए आखिरत को अपने मुज़ाकरों में लाना है, जहां हमें ईमान, अमाल, अखलाक, इखलास, ऐसे ही आखिरत है, आखिरत हक है। ये मादे का दौर है। 80 साल का बूढ़ा भी डॉलर और यूरो की बात करता है। अरे करता नहीं करता, बोलो ना भाई, जवानों से ज्यादा वो करता है। 70 साल का आदमी भी जमीन की बात करता है, फ्लैट की बात करता है, दुकानों की बात करता है। इतने सारी मजलिसें, महफिलें लगती है चौराहों पर, चौकों पर, मस्जिद के बाहर, बौकड़ों पर। उन मजलिसों में हम देखें क्या बातें हैं कि भाई चलो 70 साल की उम्र के 5 आदमी बैठे हैं, चाहे मस्जिद के बौकड़े पर बैठे, वहां बैठकर वो कब्र की बात कर रहे हैं या जमीन की बात कर रहे हैं, वो जन्नत की बात कर रहे हैं या बिजनेस की बात कर रहे हैं। वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जवान भी आखिरत की फिक्र में था, औरतें भी आखिरत के बारे में फिक्रमंद थी। औरतों का वफ्द आया आपके पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, ये मर्द जो है नमाज रोजा करते हैं, हम भी करती हैं, जिक्र तिलावत वो भी करते हैं, हम भी करती हैं, लेकिन ये राह खुदा में निकलकर बड़े बड़े दर्जे ले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा।
हमको इसका मौका नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि आप अपने घर में रहकर अल्लाह की इबादत करो और अपने खाविंदों की इताअत करो, और जब वो राह खुदा में जाए तो उनका सामान तैयार कर दो और उनके पीछे उनकी इफ्फत और इस्मत की और उनके सामान की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हें भी उनके बराबर अजर देगा। कुछ दिन ठहर गई, लेकिन रहा नहीं गया, दोबारा फिर पहुंची कि या रसूल अल्लाह, वो अजर में आगे बढ़ जाएंगे, आप हमको भी अपने साथ ले चले, हम भी दीन की मेहनत के लिए तैयार हैं। कि उनके वहां ये मुज़ाकरे थे, तो औरतें आ रही हैं कि हमको भी ले जाओ, बच्चे आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमको ले जाओ, हम भी दीन का काम करेंगे। गरीब लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह, ये मालदार लोग बड़े बड़े दर्जे ले जाएंगे कि नमाज रोजा हम भी करते वो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको माल दिया है तो राह खुदा में खर्च करते हैं और उनका अजर बढ़ जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने गरीबों को तसल्ली के खातिर उनका भी उनकी तसल्ली की और फरमाया कि काम करो कि आप लोग जो है ना हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ लिया करो, अल्लाह तुमको भी अजर देगा। मालदारों को पता चला कि भाई इनको तस्बीह फातिमी बताए, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर आए ये, या रसूल अल्लाह, ये तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई वो तो अल्लाह की देन है, माल जो है वो अल्लाह का दिया, वो अल्लाह जिसको चाहे दे। कि वहां ये बातें थी, उनके बाजारों में, उनके घरों में, उनकी मस्जिदों में, उनकी महफिलों में, उनकी खुशियों में, उनके जनाजों में दीन की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, आमाल की बातें हैं, नमाज रोजों की बातें, अजर की बात है, वादे वईद की बातें हैं। वईदों से लोग डरते थे, वईद की बात आती थी डर जाते थे, अजर की बात आती थी खुश हो जाते थे, उस पर खुश होते थे और बढ़ा देते थे अपना लगाना। जब आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी के कमाल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। तो उस वक्त के वाकयात किताबों में लिखे हैं कि जिसको जो चीज महबूब थी उसने वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। एक सहाबी ने पूरा बाग दे दिया अल्लाह के रास्ते में कि या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत इस बाग की मेरे दिल में है, इसको मैं अल्लाह के नाम पर खर्च करता हूं। यानी अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अपनी जायदाद अल्लाह के नाम पर खर्च कर दी। जिसको जो चीज है कि जो वहां वादे वईद की बातें थी, अजर और सवाब की बातें थी, तो जवान भी आते थे, या रसूल अल्लाह हम दीन का काम करेंगे। अंसारी नौजवान आए बदर के बाद आपके पास, या रसूल अल्लाह हमें मौका नहीं मिला अल्लाह के नाम पर अपनी कुर्बानी देने का, आप हमको मौका दें। तो ये उनके माहौल की बातें और मुज़ाकरे हैं। इस मेहनत से चाहा जा रहा है कि राह खुदा में निकलकर हम अपने ईमान में कुव्वत पैदा करते हुए, अमलों पर साबित कदम रहते हुए, और वहां पर हम अपनी जाती जिंदगी को संवारते हुए दीन की दावत देना भी सीखें, और फिर जब मकाम पर घर पर आवे तो घर के माहौल में रहकर हम जो है अल्लाह की इबादत करने वाले और दीन की दावत देने वाले हों, अमाल की बात करने वाले हों। मुसलमान की जबान पर लग़वियात नहीं होती हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, ये सिफत बताइए, क़द अफ़लहल मुअमिनून, कामयाब हो गए वो ईमान वाले, कामयाब हो गए वो ईमान वाले। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये सिफत बताई कि वो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले। ये हमारे लिए फख्र की चीज है कि हमारी नमाजें पाबंदी के साथ हैं, तकबीर उला के साथ हैं, सफ़े उला के साथ हैं, हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं। बाजार आबाद होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह की नाफरमानी के साथ ये रोजियां आ रही है तो ये रोजियां कोई खुशी मनाने की चीज नहीं है, नाफरमानों को हमसे ज्यादा मिली हुई है। हाँ, जिस पर आज हमें तफाखुर है कि हमारे वहां बस्ती में कॉम्प्लेक्स बन गया और बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई, मुसलमानों की इतनी दुकानें बस गई और हमारा रोजी रोजगार के असबाब खुल गए। जो रोजी रोजगार के असबाब अल्लाह से दूर कर दे, जो बाजार अल्लाह की रियायत से हमें गाफिल कर दे, उन बाजारों में कोई खैर नहीं है। वो असबाब जो है हमारे लिए खैर की चीज नहीं, हो सकता है किसी और के लिए हो, हमारे लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स खुशी की चीज नहीं है, हमारे लिए ऐसे इंडस्ट्रियल खुशी की चीज नहीं है। जो ईमानी सोच रखता है वो उस पर कभी खुश नहीं होगा। ईमानी सोच रखने वाला तो ऐसी रोजी पर खुश होगा कि जिस रोजी के बाद खुदा की इताअत की तौफीक हो जाती हो, जिस रोजी में आदमी की नमाज तर्क न होती हो, जिस रोजी में झूठ न हो, सूद न हो, धोखा न हो, गबन न हो, चाहे वो रोजी कम हो,
कि पाक साफ रोजी है, साफ सुथरी रोजी है, जिस रोजी का खुदा ने नबियों को हुक्म दिया, कुलू मिनत तय्यबात, अंबिया से कहा गया, अंबिया को कहा कि कुलू मिनत तय्यबात, ओ नबियों की जमात, लो पाक रोजी खाओ, वामलू सालिहा, और अच्छे काम करो। उलमा ने लिखा है कि अमल का ताल्लुक रोजी के साथ है, जैसा लुकमा पेट में जाएगा आदमी वैसे ही काम करेगा। तो हमारे लिए खुश होने की बात तो यह है कि हम तौबा कर रहे हैं, मुसलमान तौबा कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, मस्जिदें आबाद हो रही है, अजान से पहले मस्जिदें भर जा रही है, ये खुशी की बात है। लोग नमाजें इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, नमाजों में खुशू आ रहा है। क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो नमाजों में खुशू करने वाले हैं। उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता कि अल्लाह फरमा रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि कामयाब हो गए वो। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, लग़वियात से परहेज करने वाले हैं। ये बाजारी लोग नहीं हैं जो बाजार की जीनत बने हुए हैं, दुकानों पर, चौपालों पर, चौराहों पर, मस्जिद के बाहर या ईरान तुरान में बैठकें बनाकर, और अब चूंकि मुहज़्ज़र जमाना हो गया तो ऑफिसें बनाकर आदमी वहां लाया नहीं करें, वहां लग़वियात करें, और ज्यादा खुदा ने दे दिया तो फार्म हाउस बना लें कि वहां जाएंगे हफ्ते में 2 दिन 4 दिन और वहां जाकर अल्लाह को नाराज करेंगे। ये असबाब अच्छे असबाब नहीं है। ऐसे फार्म हाउसों पर खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे मंडियों पर खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तो रोने का मुकाम है कि अगली कौमों पर इसी तरह अजाब आया था। कौम आद पर, कौम सबा पर उनके झोंपड़ों पर अजाब नहीं आया था, उनके बंगलों में अजाब आया था, उनके महलों में अजाब आया था, उनके असबाब में और उनके कारखानों में अजाब आया था। ये तो अल्लाह के अजाब को बुलाने और उसकी दावत देने की चीजें हैं। खुश होने की चीज तो कि भाई हमारी बस्तियों में नमाजी बढ़ रहे, हमारी बस्तियों में खैरखाही बढ़ रही है, मुसलमान जुड़ रहा है, एक दूसरों के साथ खैरखाही कर रहा है, सिला रहमी कर रहा है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मददें, अल्लाह की नुसरतें ईमान वालों पर उतरी, अमल वालों पर उतरी, आपस में सिला रहमी करने वालों का। कि मदीना की छोटी सी बस्ती थी, लेकिन वो छोटी बस्ती वालों ने अल्लाह के हुक्म को जिंदा किया, 100% नमाज जिंदा की मदीना मुनव्वरा में, और नमाज का ऐसा माहौल बनाया कि मुनाफिक की हिम्मत नहीं थी जो जमात की नमाज छोड़ दे। और मदीना में ऐसा माहौल बनाया इसार और एहसान का कि फकीर आदमी अपना चूल्हा बुझाकर अपने मेहमान को खाना खिला रहा है, खुद भूखा सोकर मेहमान को खाना खिला रहा है। ऐसी बस्ती वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई, अल्लाह ने बरकतों के दहाने खोले। इसलिए हम दीन का काम करके दुनिया के लालची न बने। हाँ, किसी का बंगला देखकर राल न टपकावे, किसी की आमदनी देखकर राल न टपकावे, हाँ, किसी का लिबास कपड़ा देखकर राल न टपकावे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें सबक सिखाया है कि हम अपने ईमान में कमाल पैदा करें, अपनी इबादत में कमाल पैदा करें, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें और आपस में सिला रहमी करें, रिश्तेदारों के साथ के ताल्लुक की हिफाजत करें। पड़ोसियों के हुकूक हैं तो उनको हुकूक की अदायगी के साथ एक जिंदगी है, वो जिंदगी सीखने समझने का नाम ये तबलीग का काम है। इसके लिए मकाम पर सबको कहा जाता है कि अपनी मस्जिदों को वक्त दे, अपना खाली वक्त मस्जिदों को दे दें। अगर 10 घंटे हैं तो 10 घंटे दे दे, क्या करेंगे इधर उधर गुजार के। अभी हम मस्जिद वाले नहीं बने हैं, इसलिए मस्जिद में जी नहीं लग रहा है। जिस दिन मस्जिद वाले बन जाएंगे तो 24 घंटे मस्जिद में गुजारना आसान हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं होगा। फिर आदमी अपनी जरूरत के लिए जाएगा, खाएगा, पिएगा, कमाएगा, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, लेकिन उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होगा। जैसे खेलने वालों का दिल मैदान में अटका हुआ होता है, वो इंतजार में होते हैं शाम होने का, 4 बज जाए ताकि मैदान में जावे। बाज़ 2 बजे से निकल जाते हैं, कारोबार है तो बंद करके आ जाते हैं, घर में लड़ाई हो जाती है कि इनका दिल खेल में अटका हुआ है, बाज़ों का दिल दोस्तों की महफिलों में अटका हुआ है। तो आदमी घर में माँ बाप को वक्त नहीं देता, लेकिन दोस्तों की महफिल में जाकर 9 बजे से 8 बजे से बैठता है 12-1, उसका दिल वहां अटका हुआ है, दिल गुनाहों में अटका हुआ है। तो आदमी हर वक्त उसी की सोचता है। जब दिल मस्जिद में अटका हुआ होगा, ये ईमान की अलामत है कि आदमी का दिल मस्जिद में अटका हुआ है। खाने के लिए घर जाता है लेकिन दिल मस्जिद में है, तिजारत के लिए दुकान पर जाता है लेकिन दिल मस्जिद में है, आराम के लिए घर जाता है लेकिन उसका दिल मस्जिद में है। ये मोमिन की सिफत है कि उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ। ये अल्लाह का पड़ोसी है जो मस्जिद में कसरत से आता जाता है। कि हमारा ताल्लुक मस्जिदों से जुड़े, आमाल मस्जिद से जुड़े, मस्जिदें हमारी आबाद हो जावे,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा जाकर सबसे पहले मस्जिद तामीर की। आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने जमीन उधार ली, कर्जे में ली, और आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई, खुद अपने हाथों से बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा वो खुद मिलजुल कर सबने मस्जिद की तामीर की। मजदूरी के पैसे नहीं है और मटेरियल भी नहीं है। खजूर के तने लिए और उसके पत्तों का छप्पर बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मिलकर बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके चीजें और असबाब उठा कर जाते थे। तो सहाबा कह रहे लइन क़अदना वन नबिय्यु यामलु लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्लिलु, कि हम बैठे रहे और हमारा नबी काम करे, ये तो हमारे जिल्लत वाला काम है। तो सहाबा भी उठे और मिलजुल कर मस्जिद तामीर कर दी, सबने खुद ही मस्जिद बना ली। पैसे नहीं थे तो कर्ज में वो जमीन ले ली और मस्जिद बनाई। और पहले दिन से तसव्वुर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को कि मुसलमान का ठिकाना मस्जिद है, वो जहां जाएगा लौट कर आएगा। और सबको मस्जिद से जोड़ा, गरीबों को भी, मालदारों को भी, पढ़े लिखों को भी, अनपढ़ों को भी। यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक तो सारे उमूर मस्जिद से ही तय होते थे। यहां तक कि कैदी आते थे, उन कैदियों को भी मस्जिद में बांधा जाता था। उस्तवानतुल वसार आज भी है, वफूद आते थे, उनको मस्जिद में ठहराया जाता था, उनसे वही बातचीत होती थी, उनको दावत दी जाती थी और उनको कुरान सिखाया जाता था, दीन समझाया जाता था। और मदीना मुनव्वरा में ऐसा माहौल बना था कि चंद हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते एक नया आने वाला मदीना में ठहर जाता था तो वो बुनियादी इस्लाम को समझ कर जाता था। अमलन वो इस्लाम समझता था, इबादत समझता था, अखलाक समझता था, मुआशरत को समझता था। वो गवाही देते थे कि ऐसे लोग हैं कि जो खुद तो खाना नहीं खाते, अपने मेहमानों को खिलाते हैं। वो असर से गैर मुस्लिम ईमान कबूल कर लेता था। एक ऐसा माहौल बनाया था। इस मेहनत से वही शाह जा रहा कि हम अपनी मस्जिदों में, अपनी बस्तियों में, अपने गांव देहात में ऐसा माहौल बनावें कि जिस माहौल में कच्चा पक्का भी पक्का बन जावे। बेनमाजी की हिम्मत रहो कि वो रजा नमाज के वक्त घर हो, बल्कि वो भी ऐसा माहौल बन जावे कि वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाला बन जावे, मस्जिद में आकर दीन सीखने वाला बन जावे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्तकिल निजाम बनाया इसका कि कोई आदमी जाहिल न रहे, कोई जाहिल न रहे। इसलिए जगह जगह पर आदमियों की तायीन की और उनको काम सुपुर्द किया कि जितना दीन तुम जानते हो इनको सिखाओ। और फिर जो कुर्ब जवार की देहात और बस्तियां थी, वहां आदमी भेजे हैं तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि वहां जाओ और लोगों से मालूम करो कि जिस आदमी को भी दीन की बुनियादी बातों का इल्म नहीं है, उसको लेकर उसको दीन से, जो सीखना नहीं चाहता है उसको समझा बुझाकर उसको भी सिखाओ कि हमारी बस्तियों में कोई जाहिल न रहे अपनी बुनियादी जरूरत के दीन से। यह उस वक्त होगा जब मस्जिदों से ताल्लुक होगा। इसलिए कोशिश हमें करनी है कि हमें अपनी मस्जिदों को खुद से आबाद करना है। जब तक हम ये बाहर वाली जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, मस्जिदें आबाद नहीं होगी। दुकानों पर, चौपालों पर, चौराहों पर जो एक मुआशरा बना है ये, और जो एक निजाम कायम हुआ है, हम जरा सोचें उसके कितने नुकसानात है। उस दुनिया भी उजड़ रही है, दीन तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन जितनी लड़ाइयां हैं, जितने झगड़े हैं, वो इन्हीं चौपालों से, दुकानों से, वहां से आते हैं और फिर घरों के रास्ते से मोहल्लों में आग लगा रहे हैं। नौजवान खेल के मैदान से लड़ाई लेकर आए, वो लड़ाई गली में आई, फिर वो लड़ाई घरों में घुस गई और आपस में बोझ और कीना और अदावत पनप रहा। 2 बूढ़े जो है मस्जिद के बौखड़े पर बैठकर लड़े और फिर वो लड़ाई उनके घर तक पहुंच गई, उनकी नस्लों में मुंतकिल हो गई कि वहीं से लड़ाई आ रही है, ग़ीबतें हो रही है, तेरी मेरी हो रही है। उसके बजाय हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मस्जिद वाला बनाया था। ये मकामी काम से वही चाह जा रहा कि हम सब मस्जिद वाले बने, आमाल वाले बने, तक़वे वाले बने, अल्लाह वाले बने, जो हमारे लिए फख्र की चीजें हैं, जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता खोलने वाली चीजें हैं। इसलिए गुजारिश आप हजरात से, हाँ, कि जो हमारा पुराना निजाम है उसको हम तर्क करें, अल्लाह के लिए छोड़ दें, अल्लाह के लिए छोड़ दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीजों से अपनी उम्मत को बचाया है। हाँ, ताकीद की इसकी कि बगैर जरूरत के आपस में ज्यादा न बैठे। और आपने सराहत के साथ फरमाया ला समूरत बादल इशा, कि इशा के बाद फजूल किस्सा गोई न करें।
इसलिए हदीस में है कि ईशा के बाद 3 जमातें बन जाती हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि पहली जमात तो वो है जो इस रात को गनीमत समझती है, अल्लाह की इबादत में, इताअत में, दीन सीखने सिखाने में, एक दूसरों पर मेहनत करने में लगे हुए हैं कि इनकी रात इनके लिए मुबारक है, कि बड़े अच्छे काम में लगे हैं। दूसरी वो जमात है कि जो रात में आराम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ न खोया न कुछ पाया है कि इन्होंने अपना आराम कर लिया है। और तीसरी वो जमात है जिन्होंने इस रात की फुर्सत को गुनाहों में लगाया है। हम सोचे जरा कि हमारी रातों की फुर्सत कहां जा रही है। चौक चौराहे आबाद हो रहे हैं, बाजार आबाद हो रहे हैं, नई नई होटलें खुल रही है और फिर वहां सैर तफरी हो रही है। मर्द तो मर्द, औरतें और बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको हम ये जिंदगी सिखा रहे हैं। मौज शौक के नाम पर, कुछ तफरी और सैर के नाम पर हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। दुनिया में शरीफ लोग भी ये काम नहीं करते, चाहे उनके पास इस्लाम भी नहीं है, लेकिन वो शरीफ लोग समझते हैं ये बच्चे होटलबाजी के आदी हो गए, खेलकूद के आदी हो गए, इनकी पढ़ाई मुतासिर होगी। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए उनसे नहीं करवा रहे, वो इनको दुनियादार बनाने के लिए इससे बचा रहे हैं और उनको आवारगी नहीं सिखा रहे हैं। ये तो माँ बाप इनको आवारगी सिखा रहे हैं। ये उसी रास्ते से वो, क्योंकि वो सारी लाइनें वहीं जाकर मिलती हैं। हमें मुबारक तालीम दी थी आपने कि रात में आदमी आराम करके फिर रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह के सामने अपनी अपनी गुनाहों पर आदमी तौबा कर रहा हो, अपने लिए उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हो, उसकी तालीम दी थी। इन लोगों का खुसूसी तज़किरा किया कलाम पाक में, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि ऐसे लोग हैं कि इनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं, यानी ये रात में आराम नहीं करते हैं बल्कि अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में रात गुजारने का यही मामूल था। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम चंद नौजवान थे मदीना मुनव्वरा में, रात के इब्तिदाई हिस्से में मस्जिद नबवी में इबादत करते थे, जब थक जाते थे सो जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद एक सहाबी ने उनकी एक अहलिया से निकाह किया जो पहले हज़रत उमर के निकाह में थी। जब हज़रत उमर का इंतकाल हो गया तो उनके बाद उन्होंने निकाह किया, और जब वो उनके घर आई तो उनसे कहा कि मैंने तुमसे इसलिए निकाह नहीं किया कि तुम्हारा हुस्न जमाल ज्यादा है या तुम्हारे पास मालो मनाल है, बल्कि मैंने तुमसे इसलिए निकाह किया है कि अमीरुल मोमिनीन के साथ मुझे दिन दिन में रहने का मौका मिला। मैंने अमीरुल मोमिनीन के दिन तो देखे थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की रात मैंने कभी नहीं देखी थी, तो रात कैसे गुजारते हैं। तो मैंने सोचा कि उनकी रात की राजदार तो आप ही हैं, आप उनके घर में रही हो, तो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि अमीरुल मोमिनीन कैसी रात गुजारते थे। तो उन्होंने बताया कि अमीरुल मोमिनीन रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम फरमाते थे, सो जाते थे, आंख लग जाती थी, थोड़ी देर के बाद जागते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, फिर सो जाते थे, फिर थोड़ी देर में जागते तो जिक्र करते, फिर सो जाते थे। जब आधी रात हो जाती थी खड़े हो जाते थे, आधी रात होती थी तो खड़े हो जाते थे और फिर वुजू का फरमाते थे और नमाज में इबादत में लग जाते थे। जब 1/3 रात बाकी रहती थी तो फिर अपने घर वालों को भी जगाते थे। 1/3 रात बाकी रहती थी उस वक्त घर वालों को जगाते थे और ये आयत तिलावत फरमाते थे, वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी उसके पाबंद रहिए। ये आयतें पढ़कर अपने घर वालों को भी जगा देते थे। और दीगर सहाबा के मामूलात में कि कोई आधी रात, इब्तिदाई आधी रात इबादत करता था, कोई आधी रात पीछे से इबादत करता था, कोई 1/3 रात इबादत करता था। ये मुसलमानों का माहौल है कि जिसमें रात में इबादत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दुआएं मांगी जा रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहा है। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, कि वो सहर के वक्त यानी आखिर पहर में अल्लाह के सामने रोते धोते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। वो कौन करेगा? जो इब्तिदाई शब में आराम करेगा, कि इब्तिदाई रात में आराम किया है तो अब रात में 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले उठना आसान होगा। और अगर इब्तिदाई रात लायानी में गुजरी है, बर्बाद की है, तेरी मेरी महफिलें लगी है और होटलबाजी हुई है और सैर तफरी के नाम पर पता नहीं कितने गुनाह हुए हैं, तो फिर रात तो क्या फजर की नमाज भी गायब हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है, ये मजमा है, इनमें अक्सर लोग वक्त लगे हुए हैं, समझदार हैं, दीनदार कहलाते हैं, नमाज के पाबंद हैं, तो सिर्फ हमारी इतनी पाबंदी काफी नहीं होगी, बल्कि हमें अपनी बस्तियों में माहौल बनाना होगा।
ऐसा माहौल बने कि बेनमाजी को मेहमान हमारे घर आ गया, 2 दिन रहकर वो नमाजी बन के जाए। बाहर से कोई ऐसा आदमी घर में आ गया जो दुनिया परस्त है, पक्का दुनियादार है, वो हमारे यहाँ 1 महीना रहकर गया तो दीनदार बन के चला जाए। किसी मुल्क से ऐसा नौजवान आ गया कि जिसका सुन्नत शरीयत पर अमल नहीं है, हमारे उस माहौल में आकर वो यहां से सुन्नत शरीयत लेकर चला जाए। मदीना की बस्ती में यही था कि वहां दूर दराज से लोग आए, दूर दराज से वफूद आए, काफिले आए, सब मुसलमान होकर नहीं आए थे, बहुत से लोग समझने के लिए आए कि क्या है ये। वहां जाकर देखा, मदीने के हालात देखे, लोगों के मामलात देखे, लोगों के हालात देखे, और फिर जब वापस हुए तो इस्लाम की दौलत लेकर वहां से गए। जाहिर आए थे, सिर्फ इस्लाम लेकर आए थे, इस्लाम कबूल करके आए थे, दीन नहीं जानते थे। मदीना मुनव्वरा में 15 दिन ठहरे, 1 हफ्ता ठहरे, आपके पास लाया गया। आपने कहा कि और 1 हफ्ता ले जाओ, दूसरे हफ्ते के बाद आपके पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इम्तिहान लिया, कुछ जरूरी बातें उनसे मालूम की। जब उन्होंने उसके बेहतरीन जवाब दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुक़हा उदबा कादू अन यकूनु अंबिया, ये तो बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए, करीब है कि नबी बन जावे। यानी इतनी समझ इन्होंने हासिल कर ली दीन। 15 दिन ठहरे हैं मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह पाक ने मौका दिया है हमें कि हम अपनी बस्तियों को ऐसी मिसाल बनावें, इबादत के एतबार से, इल्म के एतबार से, अखलाक के एतबार से, सादगी के एतबार से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एतबार से। ये हमारे लिए फख्र की चीज होगी, ये कयामत पे हमारी गर्दनें ऊंची करवा दे, वरना दुनिया का मालो मता जो है वो खत्म होने वाला है। इसलिए गुजारिश है कि हम इसकी नियतें करें, अज़्म करें, इरादे करें कि इस इज्तिमा से जाएंगे तो इन चीजों को लेकर जाना है कि मस्जिद की जमातों को मजबूत करेंगे, घर घर की ऐसी मुलाकात का निजाम बनाएंगे कि 15 दिन में हम एक एक बालिग मर्द तक पहुंचेंगे, एक एक के पास जाएंगे, चाहे मानूस है गैर मानूस है, हर कलमा गो हमारा भाई है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा भाई है। बाद सगे भाइयों से कोई बात हो जाती है तो हमसे बात नहीं करता, तो भाई कोशिश करता है, खुशी गमी में उसको मनाता है कि मेरा सगा भाई है, नाराज होकर चला गया है, सगा भाई था, उसको कोई इख्तिलाफ पैदा होगा, नहीं आता घर पर, तो उसको आदमी मनाता है, उसको गैर मानूस करके थोड़ा छोड़ देता है कि वह गैर मानूस है। हमने बहुत कोशिश की, समझाया नहीं आता है, आदमी एक बार कोशिश करता है, दोबारा करता है, सेवारा करता है, खुद से नहीं मानता तो किसी और को लगाता है, उसके दोस्त से बात करता है, भाई हमारा भाई नाराज होकर चला गया है, कोई तकलीफ उसको पहुंच गई है, तो उसको कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसे जिनको हमसे गलतफहमी हुई है, हमारे आदत व अतवार की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से, या कोई दीनी की वजह से उनको गलतफहमी हुई है, तो हम उनको छोड़ नहीं देंगे, बल्कि उनके पास जाएंगे, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, उसने अखलाक से पेश आएंगे और मौका लेकर हम बात करेंगे उनसे, समझेंगे, समझाएंगे। हम खुद अच्छी तरीके से समझे हुए हैं तो फिर हम एक एक के पास जाकर समझाएंगे। और अगर हमने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है तो अब कौन सा मौका रहेगा? दीवारें खड़ी हो जाएगी, बीच में दीवारें बन जाएगी, उन मोहल्लों में गुजरना मुश्किल हो जाएगा, उन मस्जिदों की तरफ देखना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि हम जाएंगे, मौका लेंगे, ऐसा निजाम बनाएंगे कि 100% मुसलमान बालिग मर्दों तक पहुंचकर एक एक की मुलाकात करेंगे, एक एक से बात करेंगे, खैरखाही के साथ, हमदर्दी के साथ, इजहार मोहब्बत करेंगे और एक एक से बात करके समझाएंगे। क़ुलूब अल्लाह के हाथ में है, दिल अल्लाह क्या, वो कब बदलता है वही जानता है। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, हम दीवारें न बनावें, कोई तमीज न कर दें कि भाई ये मानूस है गैर मानूस है, कोई तमीज हम न करें, बल्कि सबके पास जावें, अल्लाह की बात लेकर जाना है। हमारी कोई जाती गरज तो है नहीं, हमें किसी की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, हम अपनी मालो मता के खातिर थोड़े जा रहे हैं, बल्कि हम तो अल्लाह के लिए जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकों के दर खटखटाए हैं, 70 मरतबा गए हैं, मक्के की गली गली में आपने चक्कर काटे हैं, और आपने मीना में और आपने ताइफ में चक्कर काटे हैं, मक्का के बाजारों में आप फिरे हैं, आपके पीछे आपके चचा फिरते थे, आप अगले आदमी से बात करते थे, पीछे से आकर वो कहता था भाई इसकी बात मत सुनो, ये मेरा भतीजा मजनून है, ये अपने बाप दादा के दीन से हट गया है, ये साबी हो गया है, नऊज़ बिल्लाह, ये पागल हो गया है। इस तरह की बातें होती थी और आप आगे बढ़ते थे, दूसरों से बात करते, ये पीछे आते थे, इस किस्म की बातें चलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बर्दाश्त किया अल्लाह के लिए। सहाबा के साथ इस तरह का मौका हुआ है,
ये एक मेहनत है। अल्लाह ने इस मेहनत के रास्ते से लाखों ऐसे बंदों को हिदायत दे दी जो बात सुनना नहीं चाह रहे थे, जो बात समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जमातें फिरी, दर दर गए, ठोकरें खाई, गालियां खाई उन्होंने, तादाद में थोड़े थे, लेकिन बुजुर्गों ने जिस तरह समझाया काम, उस तरीके से वो करते रहे, दर दर जाते रहे, ठोकरें खाते रहे। उनको लोगों ने गालियां दी, उनका समाज ने बाइकाट कर दिया, कि समाज ने उनका बाइकाट कर दिया। नाई उनके बाल नहीं काट रहा है, दर्जी उनका कपड़े नहीं सी रहा है, घर में उनके घर वाले उनसे तेवर बदल कर बात कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे जमे हुए रहे। बुजुर्गों की बात उन्होंने सुनी, समझी और यकीन किया कि अल्लाह पाक ने इनके दिलों पर जो बात खोली, खुदा उसके जरिए से हिदायत की हवा चलाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, दरखास्त है कि अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में हम काम करते करते किसी घर को न छोड़ें, इस किस्म के कोई तमीज न करें मानूस है गैर मानूस है, बल्कि हर कलमा गो जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उसको सीने से लगाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे। नहीं सुन रहा है, दुआ की दरखास्त कर देंगे, सलाम करेंगे, जवाब दे दे ठीक है, वो जवाब न दे, हमारी सलामें जमा होती जाएगी, हमें अपना अजर मिलता जाएगा। हम भी इस कोशिश के साथ जाएंगे, अल्लाह से मांग कर जावे। हाँ, दावत के साथ दुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। रोजाना की हमारी जो ये मुलाकातों का निजाम है, उसमें हम दुआ के साथ अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ जावें। अपने बाजुओं पर हमें भरोसा न हो कि हम बात कर लेंगे, इसलिए हम जिसको कर सकते हैं जाते हैं, और जहां लगता है कि नहीं सुनेगा तो नहीं जाते, क्योंकि हम अपनी बात के बलबूते पर जा रहे हैं, अपने बाजुओं के बलबूते पर जा रहे हैं, अपनी पहचान के बलबूते पर जा रहे हैं, इसलिए पहचान वाले के पास जा रहे हैं। जब अल्लाह की बुनियाद पर जाएंगे तो फिर सबके पास जाएंगे, जो सुन रहा है उसके पास भी जाएंगे, नहीं सुन रहा है इसलिए कि दिल तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, तो किस वक्त किसका दिल फेर दे वो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर की गर्दन मारने गए थे, नऊज़ु बिल्लाह, और अल्लाह ने हिदायत दे दी, दिल पलट दिया उनका, दिल पलट दिया उनका। ऐसे कितने किस्से मिलते हैं कि दिल बदल गया, दिल अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, उसकी दो उंगलियों के दरमियान में है, वो किसके दिल को कहां फेर दे वही जानता है। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, हम अपनी मेहनत में कमी न करें, अपनी नीयत अच्छी करें, हर मुसलमान से अच्छा गुमान करें। बदजनी करने की हमें इजाजत नहीं है, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म, के बाज़े गुमान भी गुनाह है। खामखा के हम गुमानों की इमारत तामीर न करें, कोई गुमान न करें। अगर अच्छा नहीं करते तो बुरा गुमान क्यों करें हम, बल्कि हज़रत से हुस्न ज़न रखें कि दिल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह बदल देगा, अल्लाह पलट देगा। एक माँ का नाफरमान बेटा होता है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो माँ कहते नहीं मेरे बेटे को अल्लाह सुधार देगा, मेरे बेटे को अल्लाह अच्छा कर देगा, वो ऐसा नहीं था, उसको गलत सोबत मिल गई, ऐसा ऐसा कर रहा है, वरना मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के मुतालिक कैसा अच्छा गुमान हर वक्त वो रखती है, ऐसे हम हुजूर की उम्मत से अच्छा गुमान रखें कि हर आदमी अच्छा है, किसी वजह से किसी रास्ते पर गया है, हम बदजनी न करें, बल्कि अच्छा गुमान लेकर हम अपनी मेहनत बरकरार रखें, जिसके हम मुकल्लफ हैं, नतीजे के मुकल्लफ नहीं है, लेकिन सही मेहनत करने के हम मुकल्लफ हैं कि सही अच्छे गुमान के साथ, अच्छी नीयत के साथ एक एक के पास जावें। अल्लाह जितनी तौफीक दे हम उनके साथ अखलाक से पेश आवें, उनके ऊपर अपना जान माल खर्च करें, उन पर अपना जान माल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला दिलों में असर पैदा करेगा। और अल्लाह का फजल है, ये दोनों की जमातों के जरिए से एक चलत फिरत हो गई, बस्तियों में, गांव में जहां जाना मुश्किल था अल्लाह ने राहें खोली, कुलूब में नरमी आई है, जो नहीं सुनते थे सुनने वाले आज हो गए, कल को वो आने वाले बनेंगे, राह खुदा में जान माल लगाने वाले बनेंगे। इस मजमे में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बात नहीं सुनते थे, जो बात सुनना पसंद नहीं करते थे, इसी में बैठे होंगे। इनमें से बहुत सौ के बाप दादा होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदार तबलीग वालों से लड़ाइयां की, जो काम में लगे उनसे झगड़े किए, कता ताल्लुकियां की थी एक जमाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे खुदा ने दिल बदले, और अगर उनके न बदले तो उनकी औलादें आज 4-4 महीने लगा रही है, और उनकी औलादें आज दीन के बड़े बड़े तकाजे पूरे कर रही है। इसलिए हम इस तरह की कोई तमीज न करें कि जिससे हमारी मेहनत के दरवाजे बंद हो जावे, बल्कि हम खुल कर जावे, हिम्मत के साथ मेहनत करें। रोजाना की मेहनत में अपनी मस्जिद के अतराफ का जितना एरिया है उसको कवर करें, और हफ्तावारी गश्तों में
दूसरे गश्तों के जरिए से हफ्तावारी जो 2 गश्त, एक तो अपनी मस्जिद में है, दूसरा जो गश्त है जिसके जरिए से हम और वो जवार की ऐसी बस्तियां और ऐसे मोहल्ले तलाश करें कि जहां पर मस्जिदें हैं, मस्जिदवार जमात नहीं है, या ऐसे मोहल्ले बस्तियां हैं जहां मस्जिदें ही नहीं है, ऐसी जगह तलाश करें। दूसरा गश्त आबाद मस्जिदों में न करें। आबाद मस्जिद में तो गश्त होता ही होता है, वहां की मस्जिदवार जमात चाहे 10 आदमी है, वो 10 आदमी मिलकर अपना काम करते हैं, वो 10 आदमी कुछ न कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, वहां से वो 3 दिन की जमात बना रहे हैं। दूसरे गश्त के लिए तो हम ऐसे मोहल्ले, ऐसे गांव देहातों में जा रहे हैं जहां मस्जिदें नहीं है, या मस्जिदें हैं लेकिन वहां पर मस्जिदवार जमात नहीं है, वहां दीन की मेहनत का कोई निजाम नहीं है, ऐसी जगहों पर जाते 3 महीने, अगर 2.5 महीने, 3 महीने एक मस्जिद, ऐसी जगह को निशाना बनाकर अगर सही तरतीब से गश्त करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है इन नई नई जगहों पर मेहनत की फिजा बनेगी, दावत के अमाल जिंदा होंगे। जहां इबादत खाने मस्जिदें नहीं है वहां मस्जिदें तामीर होगी, जहां मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत का निजाम नहीं है, अल्लाह ताला वहां तालीम और तरबियत का बेहतरीन निजाम कायम करेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, सब ये नियत करें कि इंशाअल्लाह दूसरा गश्त जो है, दूसरा गश्त ऐसी जगह करेंगे जहां मस्जिद मदरसा नहीं है, या मस्जिद है वहां मस्जिदवार जमात नहीं है। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करते हैं? सब नियत करें। बल्कि जो आबाद मस्जिदों में दूसरा गश्त कर रहे हैं, आइंदा से उसको बंद करें। आबाद मस्जिद में वो खुद अपना गश्त करेंगे। आबाद मस्जिद है, वहां मस्जिदवार जमात है, वो अपना गश्त कर रहा है। दूसरा गश्त जो है उस मस्जिद के लिए नहीं जहां गश्त हो रहा है, दूसरा गश्त उस मस्जिद वालों के लिए है, वो वहां जाकर करे जहां गश्त नहीं हो रहा है। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि हर मस्जिद में 2 गश्त होने चाहिए, एक तो पहला उनका गश्त और एक दूसरी मस्जिद आकर कोई वहां गश्त करे। दूसरा गश्त इसके लिए नहीं है, मस्जिद का तो असल एक ही गश्त है। फिर जमात अगर रहेगी तो जमात जितने दिन रहेगी वो गश्त करेगी, उनको हम साथ देंगे, उनका ताउन करेंगे। बाकी असल मस्जिदवार जमात का हफ्तावारी पहला गश्त अपनी मस्जिद का है और दूसरा गश्त उस मस्जिद के लिए नहीं है, वो मस्जिदवार जमात दूसरी जगह जाकर ऐसी जगह पर गश्त करे जहां मस्जिद मदरसा नहीं है, जहां पर दीन की मेहनत का निजाम नहीं है, या मस्जिद है नमाजी भी है वहां लेकिन दावत के अमाल नहीं है, ऐसी जगहों पर दावत के अमाल शुरू कर। अब उसमें बहुत सी वो बस्तियां जो मानूस हैं और वो वहां पर अमाल नहीं है तो उनमें भी करेंगे, और बहुत सी ज्यादा बस्तियां वो है जो गैर मानूस हैं, जहां मस्जिदें हैं तो वहां ठिया ठिकाना बनावे, किसी दरख्त के नीचे बनावे, या कोई ऐसी कॉमन जगह है वहां पर अपना कोई ठिया बना ले, कोशिश करें उस मस्जिद में नमाज अदा कर लें। अगर अंदर रहकर गश्त हम नहीं कर पाएंगे, लड़ाई का खतरा है, फसाद होने का खतरा है, तो हम वो जगह छोड़कर बाहर आ जावें, मैदान में बैठ जावे, दरख्त के नीचे बैठ जावे, कोई ठिया ठिकाना बना ले और वहां से एक निजाम बनाएंगे। तो अगर हमारी मस्जिद सही रूप से इस तरह काम करेगी तो अगले साल 6-7 महीने 8 महीने में अल्लाह की जात से उम्मीद है कि गैर मानूस नहीं बचेगा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि हम अपने दिलो दिमाग को साफ कर लें। अगर बदजनी हमारे दिलों में बैठी हुई है तो फिर वो बदजनी का असर वैसा ही होगा। दिल हम खुले करें, खुले दिल करें, हम अपने दिलों में वुसअत पैदा करें, अल्लाह की रहमत को महदूद न करें। हां, हमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि हम इस तरह की बदजनी के साथ जिंदगी गुजारें। मुसलमान को तो हुस्न ज़न की तालीम दी है तो वो तो नहीं मानेंगे, बहुत साल हमने मेहनत कर ली है। कब मेहनत की पूछते हैं तो 20 साल पहले गए थे। 20 साल में जमाना बदला है, नस्ल बदली है, दिमाग बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, इसलिए खामखा बदजन न रहे उनसे, अच्छा गुमान करें। हम जितना कर सकते हैं करते रहें, नहीं सुनेंगे गाली देंगे, वो गाली लिखी जाएगी, हमारे खाते में लिखी जाएगी, उसका अजर लिखा जाएगा। कोई तकलीफ हमको पहुंचेगी, उसका अजर लिखा जाएगा। इसलिए आप हजरात से अल्लाह के वास्ते गुजारिश है, अल्लाह के लिए गुजारिश है, हम तकाबुल न करें दूसरे जिलों के साथ। तकाबुल खूबी में करने का तो हुक्म है। सहाबा में तनाफुस था, सहाबा में तनाफुस था। औस वाले कोई काम करके आते थे तो खजरज का कबीला आपके पास आता था, या रसूल अल्लाह आप हमको कोई मौका दो। और वो मौका कैसा होता था? मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ने का नहीं कि औस वालों ने 10 तस्बीह पढ़ी हैं, आप हमको भी 10 तस्बीह पढ़ने का मौका दो। वो मौका ऐसा होता था जिसमें जान की बाजी लगाने की होती थी। इसलिए ये रुख हमारा है, ये मुस्बत रुख है, ये तरक्की का रुख है। जिस बस्ती वाले और जिस इलाके वाले इसको सोचेंगे कि हमारी कुर्बानियां बढ़े, हमारी जान माल राह खुदा में लगे, तो खुदा उनकी जान और माल को अपने नाम पर इस्तेमाल करके उनकी जान और माल में दुनिया में बरकत दे देगा और उनके लिए आखिरत के बड़े अजर का वादा किया हुआ है।
اور اگر ہم نے تقابل یہ کیا کہ فلاں جگہ تو بہت پرانے ساتھی ہیں اور ان کے وہاں تو لوگ نرم ہیں، ہمارے ضلع کی نوعیت یہ ہے، ہمارے ضلع کی، یہ سوچ صحیح سوچ نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ پہلے جب کام ابتدا میں شروع ہوا تو سبھی جگہ پر کوئی مانوس نہیں تھا، کوئی مانوس نہیں تھا۔ کتنی قربانیاں دی لوگوں نے، جن کی قربانیوں کے ہم قائل ہیں، ان کا ہم آج نام لیتے ہیں، ان کو ہم یاد کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہماری سوچ بدل گئی؟ ہم اپنی بس کے تو مکلف ہیں، جا کر تو دیکھیں۔ وہ نہیں سنیں گے بات کو، سلام کر لیں گے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، ان پر احسان کریں گے، خوشی غمی میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ نہیں پسند کرتے ہیں، ہم اپنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں گے، آج نہیں تو کل خدا دلوں میں جگہ بنا دے گا۔ وہ نہیں تو ان کی اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام کے طائف کا قصہ حضرت شیخ نے سب سے پہلے لکھا حکایت صحابہ، پہلا قصہ وہی ہے کہ اس کی ابتدائی قربانیوں سے ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا طائف کا قصہ نقل کر کے کام کرنے والوں کی ایک زبردست رہبری فرمائی ہے کہ اس کام کی بنیاد جو ہے مجاہدوں پر ہیں، قربانیوں پر ہیں، جان مال لگانے پر ہیں، جذبات کی قربانیاں دینے پر ہیں، اور ان ساری قربانیوں کے بعد دعائیں دینے پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانی دے کر کہ آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا کوئی قدم ایسا اگلا نہیں اٹھا کہ جس پر آپ پر کوئی پتھر نہ پڑا ہو، یعنی ہر قدم پر کوئی پتھر آتا تھا آپ کے جسم اطہر پر۔ آپ نے اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد ایک جگہ جہاں ذرا سکون کی جگہ ملی تو وہاں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ اس کام کا طریقہ ہے کہ آدمی قربانیاں دے کر محنت کر کے تھک کے اب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کی شکایت کرتا ہوں، اپنے ہیلے کی کمی کی شکایت، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری، اپنے ہیلے کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ نے بہترین تدبیر کی تھی کہ طائف والوں سے آپ کا ننیالی رشتہ تھا، یہ سوچ کر آپ نے وہاں کا سفر کیا تھا کہ شاید ان کے دل نرم پڑیں گے، پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملے کہ اگر یہ بات قبول کر لیں گے تو بات چل پڑے گی، ایک بہترین تدبیر تھی، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں۔ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات کہ اپنی تدبیروں میں کمی نہ کریں، تھوڑی قربانی ہوگی، تھوڑی مشقت ہوگی، ارے دنیا کی خاطر کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، ملک در ملک گھومنے کے لیے لوگ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، کسی ملک میں جانے کے لیے کتنا جان مال لگا رہے ہیں، کہ کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے کتنا جان مال عزت آبرو سبھی لگ رہا ہے۔ یہ عزت اور آبرو خدا کے نام پر لگے گی، اس عزت آبرو میں خدا برکت کر دے گا اور ہماری دنیا کے مسئلوں کو خدا سلوٹوں میں حل کر دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ہر مسجد وار جماعت اس پر آوے کہ ہمیں ایسے علاقوں میں جا کر کام کرنا ہے جہاں کام نہیں ہے، وہاں کے لوگوں میں طلب نہیں ہے، ان میں طلب نہیں ہے، ہمیں وہاں ماحول بنانا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو مال دیا ہے وہ مال ان پر خرچ کریں گے، جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو وہاں لگائیں گے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آ کر وہاں سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان کی خوشی میں جا کر مبارکباد دیں گے اور ان کی بیماروں کی ہم عیادت کریں گے اور ان کی غمی میں مصیبت میں جا کر ان سے تعزیت کر کے ہم ان کے دلوں میں اللہ کے دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے جگہ بنائیں گے۔ 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کی بستیوں میں ابھی زونوں کی جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، زونوں کی جماعتیں جا کر آئی ہیں، ٹھیک ہے بھائی بات کسی نے کم سنی کسی نے زیادہ سنی ہے، کوئی نہیں نکلا ہے، لیکن ہمارا چلنا پھرنا وہ نفع سے خالی نہیں ہے، چلنا پھرنا نفع سے خالی نہیں ہے۔ ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہاں جا کر دعائیں مانگنا، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہم اسی کے پابند ہیں۔ بزرگوں نے جیسے بتایا ہے کہ بھائی بنجر علاقوں میں جانا ہے، غیر مانوس بستیوں میں جانا ہے، ہم 3 دن کی جماعتیں لے کر جائیں گے وہاں اور وہاں جا کر محنت کا نظام بنائیں گے۔ ایک آدمی بھی اگر سن کر تیار ہو گیا وہ آدمی جو ہے سرا بن جائے گا۔ آج ایک تیار ہوا ہے، کل اسی کے راستے سے آگے کام بڑھے گا۔ بہت سارے ضلع میں ایسے دیہات پچھلے 10 سالوں میں، کل بھی بروڑا ضلع والوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا یہ 10 سال میں ایسی بستیوں میں جہاں کوئی مکاتب مدارس نہیں تھے 180 مکاتب نئے قائم ہوئے۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بھئی ایسے دیہات بتاؤ جن دیہاتوں میں جب آپ گئے تو آپ کو گھسنے نہیں دیتے تھے، اور ایسے کتنے دیہات ہوں گے جن میں مکتب قائم ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایسے 40 دیہات ہیں جہاں ہم گئے تو ہم کو گھسنے نہیں دیتے تھے، ہمارا داخلہ وہاں ممکن نہیں تھا۔
لیکن ایسی جگہوں پر ایسے 40 ہیں جو 10 سال کے دوران میں وہاں پر مکاتب قائم ہوئے. باقی وہ ہے جہاں جہالت تھی. اس لیے آپ حضرات سے گزار، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی. آپ حضرات ملکوں میں آپ کے ساتھیوں نے کام کیا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہاں سے وقت لگے ہوئے لوگ جا کر وہاں ذمہ دار ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں پر محنت کرتے ہیں، مقامی زبانیں سیکھ کر ان کو وہ بات سمجھا رہے ہیں. کونگو ہم لوگ گئے تھے گزشتہ، تو آپ کے یہیں کے نوجوان وہاں کی مقامی زبان سیکھ کر وہاں کے مقامی لوگوں پر محنت کر رہے ہیں. یہاں یہ اپنی زبان والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن بس ایک دیوار کھڑی ہو گئے غیر مانوس سے. اس دیوار کو ختم کرنا ہے. اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسی بستیوں میں جماعتیں لے کر جائیں گے؟ ہاں، آپس کی مشاورت سے کام کرنا ہے، مشورہ کریں گے، لیکن ایسی بستیوں میں کوئی نظام سوچیں. ہم جاتے رہیں گے، آج نہیں تو کل دروازہ کھل جائے گا. آج گئے ہیں، کوئی بات پیش آئی، کل کو پھر جائیں گے، کوئی بات پیش آئی ہے، پرسوں پھر جائیں گے، آج نہیں تو کل اللہ پاک راہیں کھول دے گا. اور اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ خدمت کے راستے سے ان کی خوشی میں شریک ہو جاوے، ان کی غمی میں شریک ہو جاوے. کوئی بیمار ہے عیادت کر لیں. ہمارے یہاں ایک دیہات ایک مسجد والوں کو دیا ہوا تھا. جو مسجد والے جہاں جاتے تھے تو دیہات کا جو ذمہ دار تھا بہت سختی سے پیش آتا تھا، مسجد میں نہیں جانا دیتا تھا. تو پھر وہ لوگ باہر ایک ٹھیا بنا کر کام کرتے تھے. 1-2 مہینے اس طرح کام کیا اور پتا چلا کہ وہ جو ذمہ دار سختی کرتا ہے وہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اور وہاں قریب کا ایک شہر ہے لونا واڑہ، وہاں کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. یہ گودرا سے لوگ جاتے تھے. ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ گودرا سے ان کے لیے کچھ پھل فروٹ وغیرہ لے کر وہ دواخانے میں عیادت کے لے گئے ان کے، اور جا کر ان کے پاس بیٹھے اور ان سے تعارف کروائے کہ ہم لوگ آپ کی بستی میں آتے ہیں محنت کرنے کے لیے، گشت کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو نام سے جانتے ہیں، ہم کو پتا چلا آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے. تو وہ آدمی رو دیا، اور کہنے لگا کہ ابھی میرا کوئی رشتہ دار نہیں آیا ہے، آپ پہلے آئے ہو، اور نرم ہو گیا. یہی تو مواقع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختی تھی، صحابہ پر کتنی سختیاں تھی، اور وہ سختی جو ہے ختم نہیں ہوئی. آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی. بدر اور احد کے معرکے پیش آئے، اور پھر جب آپ کو موقع ملا مکے میں قحط پڑا تو آپ نے مدینہ سے اناج بھیجا، اور پھر وہ گئے عمرے کے لیے تو پھر روک دیا، اور صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اور پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے. اس وقت تک شدت تھی مکے میں، آپ داخل ہوئے وہاں تک شدت تھی، لیکن جب آپ کے داخل ہونے کے بعد آپ کا سلوک دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، اور آپ کا ان کے ساتھ ویوہار دیکھا، تو پھر مکے کا کوئی گھر نہیں بچا جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو. ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جنہوں نے قسمیں کھا لی تھی. اس لیے ہمیں تو پر امید رہ کر کام کرنا ہے. منفی باتیں نہ کرے اللہ کے واسطے، نہ اجتماعی میں کریں نہ انفرادی میں کریں، نہ دو ذمہ دار بیٹھ کر ایسی بات کریں. ہاں، یہ حوصلے پست کرنے والی بات ہے. ہم سوچیں ذرا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے یہ 2 منفی بول کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اگر اس کی جگہ 2 مثبت بول لیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں، نہیں ہم جا پا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیوں ہم منفی بات کریں جس سے ہمارے بھی جذبات مجروح ہو جاوے، اور کام کرنے والا جوان طبقہ جو ہے وہ اس کیفیت سے محروم ہو جاوے جن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے جوانی میں کام کیا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ایسی بستیوں میں جو ہے جا کر محنت کا ایک مضبوط نظام 3 دن کی جماعتوں سے بنائیں گے. اور پھر جو ہے ہمارا کام یہاں پورا نہیں ہوتا. ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. قیامت تک آنے والوں کا آپ کی نبوت ہے، ایک ایک فرد امت تک دین پہنچے. اللہ کی زمین پر بسنے والا ہر انسان، چاہے اس وقت کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے. ان سب کی نیت کو لے کر پورے عالم میں پھرنا، اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں اس کو لگانے کا یہ بہترین مصرف ہے جس پر آپ نے اپنی زندگی لگائی، آپ کے صحابہ نے اپنی زندگی لگائی، آپ کے ازواج مطہرات کی زندگیاں اس پر لگی، اور آپ کے گھرانے کی زندگیاں اس پر لگی. اور صرف لگی نہیں بلکہ صحابہ اور آپ کا پورا گھرانہ جو ہے دین کی نسبت پر قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. یہ بہترین موقع، یہ سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے. یہ بہت بڑے فخر کی چیز ہے جن کو اللہ پاک یہ چیز نصیب فرما دے. اس لیے اس کی ترتیبیں بناوے. پھر ہاں، یہاں ہم دنیا کی آرزویں بسا کر اسی دنیا میں اپنا وقت پورا نہ کر دیں. یہی مکان، یہی کاروبار، انہی فکروں میں ہم اپنی زندگی پوری کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں نے ابتدا میں عرض کی، کیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
کہ جو माँ बाद मौत के लिए काम करे, और ये माँ बाद मौत के काम है कि आदमी अपनी इबादत पर कायम हो रहा है, आदमी अपना दीन सीख रहा है, अपनी जरूरत का इल्म हासिल कर रहा है, अपने अखलाक को संवारते हुए पूरी इंसानियत की फिक्र में आदमी दर बदर फिर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, और आदमी अपनी कुर्बानियां पेश करके माँ बाद मौत की बेहतरीन तैयारी कर रहा है। यह अक्लमंदी है। इसलिए बुजुर्गों ने एक निजाम कायम किया, और अल्लाह का फजल है कि आपके जिले में हजारों लोग हैं जिन्होंने 4-4 महीने लगाए हैं, कुर्बानियां दी हैं, बल्कि मुल्कों में जाकर काम किया है, और मुल्कों में जाकर इदारे कायम किए हैं, मकातिब कायम किए हैं। ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। अल्लाह की तरफ से इस पर शुक्र का मुतालबा होता है। जिन लोगों पर नेमतें हुई हैं, शुक्र का मुतालबा होता है। अगर वो शुक्रगुजार रहते हैं तो खुदा उनकी नेमतों में इजाफा करके उनसे और काम लेता है, उनकी नस्लों में उलमा को और उनकी नस्लों में दीन के दाइयों को पैदा करता है। और अल्लाह न करे अगर नाशुक्री हुई इस नेमत, अगर नाशुक्री हुई तो तारीख इस्लाम में ऐसे बहुत सारे शहर मिलेंगे जिस शहर से दुनिया में इस्लाम फैला, जिन शहरों से दुनिया में इल्म फैला, जिन शहरों से बड़े बड़े औलिया पैदा हुए, बड़े बड़े सूफिया पैदा हुए, बाद में जाकर उनके बाद वाले नाखलफ पैदा हुए, और उन्होंने अपने बाप दादा की मीरास की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपने बाप दादा के दीन की हिफाजत नहीं की, अल्लाह की दी हुई नेमतों में मशगूल हो गए, वो ऐशो इशरत में पड़ गए, मालो दौलत के तालिब बन गए, अय्याशों में लग गए, तो फिर उन जगहों से दीन रुखसत हो गया, उन जगहों से वो नेमतें चली गई। हाँ, और वहां खुदा का नाम लेना मुश्किल हो गया। अल्लाह की जात जो है वो बहुत गनी है, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हम इस पर शुक्रगुजार रहें कि यहां से इलाकों में मुल्कों में काम हुआ है। यहां के लोगों ने जाकर इलाकों में और मुल्कों में मकातिब कायम किए, मदारिस कायम किए हैं, और दीन के फैलने का जरिया बने हैं। ये हमारे लिए शरफ की बात है, हमारे लिए इज्जत की बात है कि दुनिया के जिन मुल्कों में जमातें जाती हैं तो वहां उन मुल्कों में यहाँ की मेहनतों के आसार पाए जाते हैं, चाहे वो दावत के रास्ते से हो, इल्म और तालीम के रास्ते से हो, मकातिब या और दीनी खिदमत के रास्ते से हो। ये हमारे लिए शरफ और इज्जत की बात है। लेकिन ये मकाम जो है वो शुक्र का मकाम है। कहीं ऐसा ना हो कि इस नेमत पर नाशुक्री हो जाए, बल्कि मजीद कुर्बानी बढ़ाकर हम शुक्रगुजार बने कि हम और कुर्बानी बढ़ाएंगे और राह खुदा में इतनी कुर्बानियां देंगे कि अल्लाह हमसे राजी हो जावे और दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो जावे। इसके लिए सब तैयार है भाई? अरे भाई, इसके लिए सब तैयार हैं? इसके लिए पूरे मजमे से गुजारिश है कि पूरा मजमा नियत करें कि इंशाअल्लाह राह खुदा में हर साल 4-4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन लगाएंगे? अल्लाह की तरफ नजर करें, अल्लाह की तरफ नजर करके इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेंगे। हम अपने जिन आजार की वजह से रुक रहे हैं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम अपने जिन आजार की वजह से रुकते हो, यकीनी बात नहीं कि तुम्हारे रुकने की वजह से तुम्हारे आजार और तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर तुम इन आजार के साथ अल्लाह का काम करोगे, अल्लाह राजी होकर तुम्हारे मसलों को हल कर देगा और तुम्हारे बगैर हल होंगे। तुम्हारा भी यकीन बनेगा कि अल्लाह ने मेरे बगैर किया, और तुम्हारे घर वालों का यकीन बनेगा कि अल्लाह ने उनके बगैर कर दिया और अल्लाह ने किया। तो इसलिए गुजारिश है, दरखास्त है, कहे इस वक्त तो इस इज्तिमा से जाने वाले अल्लाह उनको मुबारक करे, उनके सफर को आसान फरमावे, आलमगीर हिदायत का जरिया बनावे। वो तो जारी रहे इस वक्त इज्तिमा से, लेकिन जो इस वक्त तैयार नहीं है अभी तक भी, वो तय करे कि इंशाअल्लाह अगले 2 महीने में, 4 महीने में हम तैयारी करके अपनी अपनी मस्जिदों से 4-4 महीने की जमातें बनाएंगे। उसके लिए हिम्मत के साथ खड़े हो जाए। एक मिनट भाई, माशाअल्लाह बहुत मजमा, बड़ा मुबारक मजमा है, और आप हजरात ने बहुत इत्मीनान से बात सुनी है। और ये ज़िला हमारा ऐसा है कि जिसमें जमाव है। अब ये मौलाना की पूरी बात हुई, आइंदा के लिए हमारे कुछ पूरे साल के एतबार से तरतीबें बन जाए। इसके लिए जो भी हमारा ताउन करेगा अल्लाह उसको बहुत बदला देंगे। तो आप आखिर तक बैठेंगे, एक थोड़ी देर के लिए आखिर तक बैठे, और जिस तरतीब से हम करना चाहते हैं आप हमारी मदद करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पहली बात तो जैसे मौलाना ने कहा कि इस पूरे साल के एतबार से कम हम यहाँ से आज़ाइम करें कि मुझे इस साल 4 महीने लगाने हैं और जल्दी से जल्दी लगाने हैं। ये तो आज़मा कर लिया सबने भाई, फाइनल हो गया। अब इस मजमे में हमारे वो साथी जो अभी से लेकर के बकरीद तक में इंशाअल्लाह 4 महीने जाएंगे,
वो जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह, बकिया बैठे रहे। चलो हिम्मत के साथ उठना शुरू करो, उठो उठो जल्दी। पूरे मजमे से मैं कह रहा हूं, पूरे मजमे में अभी से लेकर यहां से अल्लाह से हुस्न ज़न रखोगे, अल्लाह की मदद को सच्चा समझोगे, अल्लाह चलाएगा और पहुंचाएगा। भाई तुम लोग थोड़े पीछे हो जाओ और उठो उठो, हिम्मत के साथ उठो, वही अपनी जगह खड़े रहो। जो साथी भी अभी जनवरी से लेकर के जून तक में अपने 4 महीने के लिए निकलना है, मुझे ये तय करता है, वो अपनी जगह खड़ा हो जाए। भाई काफी लंबा वक्त है ये, हाँ, और ये साथी जो मेरे सामने है, जरा दो दो थोड़े थोड़े हट जाओ, बीच में जगह करो, ताकि पीछे वालों को आगे बुला रहे हैं मुझे। पगडंडी करो, जल्दी ताउन करो जी। और कौन हिम्मत करता है? बहुत लंबा वक्त दिया है, तकरीबन 6 महीने का। अल्लाह से हुस्न ज़न रखो, मुझे जाना है, मेरा रब मुझे ले जाएगा, मेरे मसाइल को खुदा हल करेगा। इस आज़्म के साथ उठोगे, अल्लाह की मदद आएगी। और हिम्मत से उठो। माशाअल्लाह। नफ्स और शैतान जो है वो नहीं चाहते कि आप खैर के रास्ते पर जाए। भाई मैंने ये इशारा किया, ये आखिर तक का है। वहां से मजमा आएगा, तुम्हारी गर्दनों को फलांता हुआ आएगा। वही बैठे बैठे आगे पीछे हो जाओ। ये मजमा जो है, ये बीच में से होकर या मेरे सामने आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह आप जो तय करेंगे उसी वक्त में इंशाल्लाह जून तक में भेजेंगे। भाई भाई बेटे जल्दी आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ तखत के करीब आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जो भी है जहां पीछे तक, ये अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले लोग हैं। अभी देखियो, उठियो मत, शैतान उठाएगा। शैतान की कमर पर बहुत जबरदस्त लात पड़ रही है, वो आपको खाता न बनावे। बैठे रहो अपनी जगह। अगर 4 महीने जाना है, आगे आ जाओ, जून तक में जाना है जिसे भी, बाकी अपनी जगह बैठे रहिए, अल्लाह के दीन को हमसे नुकसान न पहुंचे। और आओ और आओ, जो तैयार है जून तक में इंशाल्लाह 4 महीने हम जाएंगे। भाई ये जो साथी खड़े हैं, बैठ जाओ, या तो यहां आ जाओ, वहीं बैठ जाओ। आपको देखकर दूसरे खड़े हो रहे हैं। हमारा पुराना अच्छा खासा साथी ये नहीं समझ रहा है। आओ जल्दी आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत मुबारक मुबारक। आ जाओ, जल्दी करो। अभी से लेकर जून तक, इस बार शब बारात भी आएगी, रमजान भी आएगा, हज भी आएगा, ये मुबारक महीने हैं सब। और आगे आ जाओ, पीछे नियतों में आगे बढ़ो, आप लोग भी आगे आ जाओ। अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ ले आए। खूब अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो। जल्दी आओ, आओ, देर हो रही है और काम है मुझे। हर मस्जिद से 2-3 आदमी आ जावे, हर मस्जिद से कोई 4 महीने मस्जिद की खाली न हो। ओ भरूच वालों, ओ जिले वालों, कोई मस्जिद तुम्हारी खाली न हो जहां से 4 महीने की जमात न जाए। आओ, बढ़ो आगे, बढ़ो। आ रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आ जाओ, अभी तश्कीलें मत करो भाई, और जल्दी आओ। भैया रास्ता खुलिएगा, जरा तेज कदम, जरा जगह दे दो आने की, भाई जगह दे दो पीछे आपके। और जल्दी आने वाले आओ, इसको भेजना है, अगला काम है। अल्लाह ताला कबूल फरमावे, सबके लिए आसान फरमावे। और हिम्मत करो, आओ, बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। हो जवान हो, क्या बूढ़ों की तरीके से चल रहे हो यार। भाई बेटा, आप लोग जो आप बेटा, ये साथी जो आपका इंतजार कर रहा है, सीधी ये पूरी खेप सीधी ये पूरी खेप वहां चलिए, जल्दी जल्दी। अरे यार, भरूच का लोगों तो पत्थर पर पाटू मारे ना तो क्या पानी काढ़े, तो मेरे को चालवा भाव करो। चलो जल्दी करो भाई, ये बच्चा बीच में किसका खड़ा है, उसको एक तरफ करो। आओ आओ, और है कौन, और कौन है जो दीन के लिए, अल्लाह के नबी के दीन के लिए लब्बैक कह रहा हो। बड़ो, इनके साथ मिल जाओ।
भाई आप लोग जो बैठे हो, मैं जरा एक बात कहूं, मेरी तरफ देखो जरा, मेरी तरफ देखो। मुझे यहां से वहां तक सीधी पगडंडी बनानी है। मारा हाथ जुओ, मारा हाथ जुओ, मारा हाथ जुओ, પેલા પાછળ વાળા બી જુઓ, ક્યાં સુધી બનાવી છે પેલા जुबानी बात નથી સમજા। करो जल्दी करो, इनको बताओ जल्दी। તમે તો સમજો, नाकुद बंद કરીને बैठो। यहां से लेकर वहां तक जाओ, रास्ते से तैयार करो। भाई इनमें के साथियों को आप अपनी तरतीब से बिठा दो, एक साथी भी जाए नहीं होना चाहिए, ये बड़ा कीमती मजमा है। अच्छा भाई, अब बहुत से साथियों को कुछ मसाइल है कि साहब ये, तो अब आप ये तय करो कि जुलाई की 1 तारीख से लेकर अक्टूबर की 30 तारीख तक आप में से 4 महीने के लिए कौन तैयार? करो हिम्मत, करो हिम्मत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर चीरते हैं तो उसे दरिया बहाते हैं। क्यों क्यों किससे घबरा रहे हो? वो अल्लाह बड़ा है, वो रब है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। हमें रोकने वाला सिर्फ नफ्स और शैतान है। उस अल्लाह के भरोसे पर आज तक जिसने किया, अल्लाह ने किसी को नाकाम नहीं किया। और हिम्मत करो, हिम्मत करो, तय करो। जून में कह रहा हूं, बाजों के कोई मसाइल होते हैं कि साहब जाना है लेकिन थोड़ा सा ताखिर करो। अब ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तकरीबन 10 महीने मिल जाएंगे। और हिम्मत करो, जो हिम्मत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहां आओ मेरे पास, पीछे वाले आगे बढ़ो, बढ़ते रहो आगे। चलो आओ जल्दी करो, जो बैठे हैं वो हिम्मत से कदम उठाओ। वो रब बड़ा है।